YouTube में डाल दूंगी, and I will share the link on group so that everybody has the visibility of our session today. आप इसको circulate कर सकते हैं through YouTube to your friends and family. So let's start the session. Thank you so much. Thank you, everyone. A very good evening to you. Today you've joined the class to master yourself in numerology and basically to understand. So a Jai Guruji to all. May Guruji bless each and everyone जो इस session में आए हैं. I'm really hoping and praying कि आप जो भी purpose से ये session को attend कर रहे हैं, आपके उसमें achievement हो. And so my Guruji bless you all. Another thing for people who are celebrating Easter today, a happy Easter to everyone. It's a nice Sunday, Easter Sunday, and I hope people who believe in Jesus Christ, they are happy today and obviously celebrating Easter with their family. I would request everyone, आप वैसे मैंने आप लोगों को सबको म्यूट कर दिया है, मैं आपको individually during the session unmute करूंगी because I want this session to be interactive. Only thing is अगर मैं सबको unmute कर दूंगी, unfortunately it's going to be a disturbance for everyone because by mistake हमसे हो जाता है कि हम लोग mute हटा देते हैं and there the whole session gets spoiled. So chaliye, once again Jai Guruji and happy Easter to everyone. So as like what I said, we are here to understand about missing numbers. So मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि जब भी आपको कोई टॉपिक लेकर मैं बात करूं उसके बैकग्राउंड के पीछे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती हूं. It's not just only talking about लोशो ग्रिड, and since मैंने बोला ये सेशन बिल्कुल ही इंटरैक्टिव होगा, so it is definitely going to involve some exercise. ये फर्स्ट स्लाइड है जो मैं थोड़ा सा बोलूंगी, and in the meantime I would request you, अगर आप एक पेन और पेपर अपने पास प्लीज रेडी रख लें, because वो एक्सरसाइज जो इंटरैक्टिव एक्सरसाइज आप करेंगे that will be completely on missing numbers, जो आप अपने मिसिंग नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे. I hope it is interesting for you. जो लोग repeatedly join कर रहे हैं, I'm sure they can understand what is लोशो grid, but not everybody understands लोशो grid and not everybody understands what is a driver and a conductor. उसके लिए मैं आप लोगों को brief करूंगी. Don't worry about it. So starting the session, impact of missing numbers. What is missing numbers? So हम सबकी date of birth, why have we taken birth on a specific date? There has to be a reason. Obviously karma is one, and we come on this earth for a particular reason. हम लोग अपने उस जर्नी में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, कुछ हमारे फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, आई शुडंट बी यूजिंग द वर्ड बट हाँ जी, कुछ हमारे एनिमीज भी बन जाते हैं फॉर सम ऑफ द अदर रीजन. And this is all because of our karmas. So जब हम एक particular day of birth, मतलब एक particular date of birth पे आते हैं इस दुनिया में, हमारा एक day होता है, हमारा उस particular period में एक month होता है, and obviously there is a year that is attached to it. Now what you see in front of you is a synopsis जो हम लोग एक लोशो ग्रिड से derive करते हैं, which means to say कि किसी का ये चार्ट है जो आपके आगे मैंने प्रेजेंट किया हुआ है और उस पे आप क्या देख रहे हैं. अभी ये चीज भूल जाइए वो नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं, वो तो मैंने आपको थोड़ा बहुत जस्ट एक्सप्लेन कर दिया कि ये सारे आपके नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में से घूमकर ही आ रहे हैं, कहीं और से नहीं आ रहे हैं. सो अ शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन टू से कुछ जगहों पे आपको मिसिंग 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 नजर आ रहा है. So today is the session to talk about the impact of these missing numbers in our life. So just a short coverage. Numbers that are completely missing from the chart indicate lesson that a person has to learn in his lifetime. Obviously, सारे numbers हमारी date of birth में होते ही नहीं है जब हम लोग calculate करते हैं. It is ought to have some missing numbers, and these missing numbers are playing some role in our life.
So knowing what numbers our family friends are missing in their chart allows us to know what they are struggling to learn. प्लीज रियलाइज करिए, आप इंडिविजुअली भी बहुत टाइम पे नोटिस करेंगे, आप दूसरों को देख के ये बोलते हैं कि इनका कैरेक्टर ऐसे क्यों है। एक फैमिली में आई अंडरस्टैंड कि 3 बच्चे अलाइक नहीं हो सकते, 2 बच्चे अलाइक नहीं हो सकते, बट वो 2 बच्चे भी डिफरेंट क्यों हैं? 2 ब्रदर्स डिफरेंट क्यों हैं? 2 सिस्टर्स डिफरेंट क्यों हैं? दोनों ने अलग उनकी अलग डेट ऑफ बर्थ है, एंड ऑब्वियसली वो डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में उनको इम्पैक्ट कर रहा है। सो ये जो मिसिंग नंबर्स होते हैं, ये सबसे बड़े हमारे एक फैक्टर्स हैं जो आप लोगों को कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली रियलाइज नहीं होता, बट हम फिर भी बोलते हैं ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। सो इट इज बेसिकली many reasons, and out of those many reasons it is the numbers which are missing in your chart. This enable us to understand and support. So obviously आज के बाद जिन लोगों ने ये सेशन कभी पहले अटेंड नहीं किया, when you go back and make Losho grids of your friends and family, आपको रियलाइज होगा कि एक पर्टिकुलर इंसान उस तरीके का बिहेवियर उसका क्यों है, and you will be able to understand and probably support them in life. कई बारी हमारे खुद के बच्चे, हम लोग नहीं रियलाइज करते कि वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं, उनके भी तो मिसिंग नंबर्स हैं। So obviously starting the day that you come into this world, you have some numbers which can be accumulative numbers, means many numbers, repeat numbers, I should use the word, and sometimes you would probably have numbers like missing numbers. Can I please request, आप लोग प्लीज कॉन्शियस होइए और अपने आप को म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। So without this knowledge, we might just criticize others of their performance in certain areas. Just a second, I need to mute everyone. Okay, so without this knowledge, we might just criticize others for their performance in certain areas. This never works. By knowing their missing numbers, we can encourage and help them in their difficult areas and encourage to lead a more successful life. Why not? हम अपने बच्चों के लिए, अपनी खुद की फैमिली के लिए ये क्यों नहीं कर सकते? So everyone has at least one missing number in his or her chart, and this is what we are going to understand moving forward. Okay, आपके आगे, for those who are aware of Losho grid, it is very good. For those who are not aware of Losho grid, I'm not giving you the background what is Losho grid all about, but it is related to numerology. अभी आप यही लेके चलिए कि एक चार्ट है आपके आगे, और इस चार्ट पे एक नंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखे गए हैं। पैटर्न क्या है? 492 357 816। जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये वेबिनार ज्वाइन किया है, मैं उनको जरूर इतनी सी चीज बताऊंगी कि लोशो ग्रिड, ये जो ग्रिड है, ये जो नंबर्स है, एक टॉर्टोइस के ऊपर पाया गया था। इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी, नॉट अ न्यू स्टोरी। सो चाइना में रेन्स हुए थे, फ्लड आया था, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम एक टर्टल इमर्ज हुआ था फ्रॉम द रिवर। अगेन इफ यू वांट टू लर्न द हिस्ट्री, प्लीज आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बारी जब भी टाइम मिले गूगल पे सर्फ करके लोशो के ऊपर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बट दिस टर्टल हैड स्पेसिफिक नंबर्स, एंड दीज आर द नंबर्स व्हिच वर लेटर इंटरप्रेटेड टू से 492 is part of, let's say this is a body, so 492 is a part, and a part which is the top part of a human being, so हमारा head, ठीक है? And 357, it is the middle area of the human being, so from neck to stomach, and 816 is the lower area of a human being, so we could probably call it as our legs. So ये पूरा एक शरीर को दर्शाता है, और 492 357 816 आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट करिए, चाहे वर्टिकली करिए, चाहे हॉरिजॉन्टली करिए, चाहे डायगोनली करिए, and this is an explanation only for those people
who are attending this session for the first time, आपको ये सम टोटल 15 मिलेगा। एंड ये सम टोटल 15 इसलिए है, ये लक्ष्मी जी का नंबर है। सो इसको एक तरीके से आप लक्ष्मी यंत्र भी बुला सकते हैं। लक्ष्मी यंत्र अगर आप देखें, कुछ नंबर्स ऊपर नीचे दिखेंगे बट इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। सो लोशो ग्रिड के डायरेक्शंस भी हैं, जैसे हम लोग वास्तु सीखते हैं वैसे ही न्यूमरोलॉजी के पार्ट में भी डायरेक्शंस की बात करी जाती है। 1 इज नॉर्थ। 1 क्या है? ये सारे 1 2 3 4 ये सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। 1 सूर्य है, 2 चंद्रमा है, 3 जुपिटर है जो गुरु है, 4 राहु है, 5 हमारे बुध के प्लैनेट हैं, 6 हमारे शुक्र के प्लैनेट हैं, 7 केतु, 8 शनि और 9 मंगल। सो उसी तरीके से ये लोशो ग्रिड जब बना है, इसके पास भी डायरेक्शंस हैं। नंबर 1 नॉर्थ पे है, नंबर 9 साउथ पे है, नंबर 3 ईस्ट पे है और नंबर 7 वेस्ट पे है। दैट ऑल्सो डिटर्मिन्स 2 and 7 के भी तो ऑब्वियसली डायरेक्शंस होंगे अकॉर्डिंग टू द वेस्ट साइड ऑफ द एरिया, and similarly 4 and 8 के on the east side of the area. So north east would be 8, south east will be 4. So मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये सारे planets हैं and each line is part of the numbers. Just a second, please. I need to mute everyone. Okay. Just bear with me. I needed to mute all. Yes, I've already done that. Don't worry. Okay. Coming back. These are the numbers. एक चार्ट में जो आपको दिख रहे हैं, ये आपके सारे प्लैनेट के नंबर्स हैं। अब आपने क्या करना है? You all need to take a sheet, a pen, and please अपना एक लोशो ग्रिड बनाइए, जिस तरीके से नंबर्स इसी तरीके से रहेंगे। All that we need to understand is कि आपके मिसिंग नंबर्स क्या है। आपको मुझे मैसेज नहीं करना, आपको अपने चार्ट पे अपने मिसिंग नंबर्स बट रख दीजिए। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ये वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। आपको एक ड्राइवर और एक कंडक्टर नंबर भी निकालना होगा। ड्राइवर नंबर क्या होता है? आपकी डे ऑफ बर्थ, जो डे जिसमें आपने बॉर्न लिया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, बेसिकली डे डेट एक ही चीज है। 20 अक्टूबर 1969 अगर कोई बॉर्न हुए हुए हैं, ये जो 20 है इसको सम डिजिट 1 पे करना है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में हर चीज 1 से 9 नंबर की ही होती है। सो 20 मीन्स इक्विवेलेंट, इट इज 2। सो आपका ड्राइवर नंबर 2 है। कंडक्टर नंबर क्या होगा? सम ऑफ अ कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, दैट मीन्स 2 + 1, क्योंकि जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। 2 + 1 + 1 + 9 + 6 + 9। अगर आप इनको टोटल करेंगे आपको 28 मिलेगा। दैट मीन्स सी जो हम कंडक्टर बुला रहे हैं इज इक्वल टू 1। दोबारा बोल रही हूँ, आप लोगों को मुझसे शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है अपना मिसिंग नंबर्स। ये एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इंटरैक्टिव है। सो ऑब्वियसली आप ही को इसका जवाब देना है, मुझे नहीं, ठीक है। तो आप प्लीज मुझसे मिसिंग नंबर्स मत शेयर करिए, अपने पास ही इस मिसिंग नंबर्स को लिखिए। आप कईयों के लिए पूरी लाइन मिसिंग होगी, कईयों के लिए डायगनली पूरा मिसिंग होगा, कईयों के लिए बहुत सारे नंबर्स मिसिंग होंगे। सो डोंट वरी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, the impact of these missing numbers. So I will give you 2 minutes or I will give you 3 minutes. आप please ये time लीजिए and all that you need to do is make this chart. Numbers change नहीं होंगे। संदीप जी, just please be careful. आपका ना पेन से मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, which is probably not correct. मेरा भी डिस्टर्बेंस होगी सबको। मीनाक्षी जी, 1 मिनट। I'm giving you this time.
I hope you can hear me now. मीनाक्षी जी, please unmute yourself. आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? You've raised your hand. हमें जीरो को कहाँ प्लेस करना है? जीरो doesn't have any place in the Low-Shoe grid, right? No, Meenakshi, zero has no place. So what you're basically doing is, अगर मैंने नीचे जैसे एग्जांपल दिया, आपको सिर्फ वही नंबर्स डालने हैं इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 1 to 9. और अगर 1 दो बार है तो it would be 1 1 at the same box. Absolutely correct. Yes, Okay. मीनाक्षी. Fine. जो आपका बॉक्स है, fine. अगर आप लोगों के पास किसी के भी पास रिपीटेड नंबर्स हैं, आप इजीली उसको उसी बॉक्स में अपने नंबर्स को रिपीट कर दीजिए. So if somebody has a repeated number 1, please go ahead and repeat that number. Meenakshi, you can unmute yourself, or you've already asked the question, so I'm lowering your hand. मैम, हाँ जी, बोलिए. मैम, जैसे स्मॉल क्वेश्चन कि ना ये नंबर रिपीट कितनी भी बार हो सकते हैं? आपके कितनी बारी हो रहे हैं? मैक्सिमम अप टू 6 कोई नंबर रिपीट हो पाएगा. मैम, मेरे टू टाइम्स रिपीट. That's absolutely fine. Don't worry. अलकनंदा, I'm asking you to unmute. आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए. मैम, मेरा DOB 26 मार्च है, बट मेरा जन्म मिडनाइट 12:25 पे हुआ है, तो मैम मेरा DOB 26 होगा और 27, क्योंकि इससे मेरे बेसिक नंबर और उससे दोनों चेंज हो जाते हैं. बिल्कुल. सो आप जिस टाइम पे बॉर्न हुए हैं, जिस दिन बॉर्न हुए हैं, इफ इट इज पास्ट मिडनाइट, वो जो फॉलोइंग डे का है, आप जिस दिन अपना नॉर्मली बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो ही होगा. ओके, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है. हाँ तो मेरा जी, 27 इस तरीके से हो जाएगा वो. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो अभी तो आप मैं अपना करिए. 27 मानूं? हाँ जी, आप जिस दिन अपना दोबारा बोल रही हूँ, जो 12 बजे के बाद दिन बदलता है, उस पे अपनी डेट लीजिए. जब हम डिटेल चार्ट्स पे जाते हैं, तब ये कैलकुलेशन करते हैं आगे और पीछे का दोनों, बिकॉज आपको आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के चेंजेस उससे पता चल जाएंगे, जो एक दिन पहले के होंगे या एक दिन बाद के होंगे. सो डोंट गेट इनटू दैट. अभी यू सिंपली टेक इट द वे दैट यू डू योर, जो भी आपका बर्थ डेट है, आप जो सेलिब्रेट करते हैं, उससे कैलकुलेट करिए. एब्सोल्युटली मीना जी, 30 इज इक्विवेलेंट टू 3. सो वही आपको सम फिगर्स. न्यूमरोलॉजी में हर कुछ चीज इट इज बिटवीन 1 and 9. सो हर कुछ आपका सिंगल डिजिट पे सम होगा. ओके, मैं आप लोगों को प्लीज म्यूट कर रही हूँ. अपर्णा, यू हैव समथिंग टू आस्क, प्लीज गो अहेड. मैम, मेरे ना 4 1 आ रहे हैं ग्रिड में. That's okay. आप 4 बारी 1 लिख लीजिए अपर्णा. That's absolutely fine. और 99 और 77 ऐसे. That's fine. That's absolutely fine. और ये normal है, so don't worry. Okay, thank you मैम. ठीक है. Somebody, Oppo Reno, you can go ahead and ask your question. मैम एक्चुअली आई वांट टू से कि हमें नेम नंबर भी ऐड करना होता है लोशो ग्रिड में? नहीं, नेम नंबर ऐड नहीं होता लोशो ग्रिड में. नेम नंबर इज अ सपोर्ट नंबर, वो लोशो ग्रिड में ऐड नहीं होता. लोशो ग्रिड इज ओनली योर डेट ऑफ बर्थ. ओके, कुआ नंबर भी ऐड नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल कुआ नंबर भी ऐड नहीं होगा. जो भी आपके सपोर्ट नंबर्स हैं, वो कोई भी नंबर्स ऐड नहीं होते. गैलेक्सी M31, प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन. गैलेक्सी M31, आपके पास कोई क्वेश्चन है? ड्राइवर कंडक्टर ऐड होगा इसमें या वो भी नहीं होगा? नहीं, ड्राइवर कंडक्टर तो आप डाल सकते हैं ना चार्ट पे. जो आपका ड्राइवर और कंडक्टर है, वो चार्ट पे डाल लीजिए. ठीक है, सिर्फ कुआ नंबर नहीं पड़ेगा. मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, नेम नंबर्स किसी को भी आते हैं कैलकुलेट करने, वो नहीं होता लोशो ग्रिड में. कुआ नंबर नहीं होता लोशो ग्रिड में. लोशो ग्रिड इज बेसिकली योर डेट ऑफ बर्थ ओनली. ओके, थैंक यू. Nagashri, you can go ahead and ask your question. Nagashri? Go ahead and ask your question. Am I audible?
Yes, you are. So I just want to know if date of birth is also 5 and the driver number is also 5. Yes. I mean the driver number, sorry, the conductor number is also the same. Then I have to repeat it, or I should not? No, So if if it is if your driver number is 5 and your day of birth is 5, single digits do not get repeated. So आपने उसमें करना है. As of now, see, this is just a webinar. So that is a detailed study. अगर किसी के पास है भी, वो उसको double भी कर दे. No worries at all for the timing. If anybody doesn't understand what that means. Okay, ma'am. Thank you so much. I have somebody from iPhone. Please go ahead and ask your question. हेलो मैम. Good evening. गुड इवनिंग मैम. मैम मेरी जो लोशो ग्रिड है वो उसमें 9, 5, 1, 2, 7, 6 सभी मिसिंग है. That's fine. कोई बात नहीं. आपके पास जो है उसको डालिए. That's fine. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिसिंग्स आएंगे. So don't worry. मैम इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? वही चीज हम आगे डिस्कस करेंगे ना. Okay, so I think a majority of people have already done their Losho grid. I am sorry, Neelam ji and Pankaj ji, if you can just bear with me for a while. या मैं आप quickly अपना questions पूछिए, इसके बाद कोई ना और पूछे. नीलम जी, please go ahead. नीलम वर्मानी, please go ahead. नमस्कार मैडम. नमस्कार जी. मैम मेरा सवाल ये है कि मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर, लेकिन डॉक्यूमेंट में 7 अगस्त बिकॉज ऑफ एडमिशन वगैरह के चक्कर में हमने करवा लिया था. नीलम जी, आपको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ यूज करनी है, डॉक्यूमेंटेशन वाले ने. हाँ, मेरा यही क्वेश्चन था, कौन सा लिया जाए कि ओरिजिनल. और डॉक्यूमेंट में तो 7 अगस्त तो उसका कोई मायने नहीं होता, उसका कोई मायने नहीं है. वो बैंक में सब कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लेनी है. ओके मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. पंकज जी बोलिए. गुड इवनिंग मैम. वेरी गुड इवनिंग मैम. एक क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजी होती है, उसके अंदर हम क्या कहते हैं प्रेडिक्शन कर सकते हैं हेल्थ इश्यूज वगैरह की. हाँ जी, न्यूमरोलॉजी में भी तो कर सकते हैं. न्यूमरोलॉजी में भी पूरी प्रेडिक्शंस होती है. मेरे इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हाँ जी पूरी होती है जी. अपने आप में कंप्लीट साइंस है. मतलब ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी से हम सीख सकते हैं, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं करना चाहता है तो न्यूमरोलॉजी से भी चीजें प्रेडिक्ट कर सकता है जो एब्सोल्युटली इवेंट्स होने वाले हैं. हाँ जी यू कैन. Okay, I have somebody, one last, this awakening 1111. Please आप अपने question पूछिए. हेलो. हाँ जी मैम पूछिए. ओम शांति मैम. ओम शांति मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिनकी ड्राइवर नंबर 2 डिजिट में है, हाँ जी, लाइक 12 है, तो हम 1 और 2 भी लिखेंगे और सिंगल डिजिट वाला 3 भी लिखेंगे? नहीं, सिर्फ 3 लिखेंगे. सिर्फ 3 लिखेंगे. हाँ जी. थैंक यू मैम. ओके जी. चलिए, आई एम गोइंग अहेड एंड म्यूटिंग एवरीवन, अदरवाइज हम लोग ये आगे नहीं कर पाएंगे. फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, वील टेक अप द क्वेश्चंस लेटर. सफिशिएंट टाइम दूंगी. ऐसा नहीं है कि अगर वेबिनार बना रखा है आपके क्वेश्चन सारे फॉलो करूंगी. सो डोंट वरी एज ऑफ नाउ. लेट्स मूव अहेड, अदरवाइज हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. ओके, सो द इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर्स. अब आप में से जो भी एंड प्लीज इसके लिए प्लीज रेज योर हैंड्स. आप लोगों के चार्ट में जिसके पास भी मिसिंग नंबर 1 है, are you unable to express your inner feelings and emotion? Less emphasis on independence, confidence, courage, initiate. आप लोगों को इसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है. People who have missing number 1, please raise your hands. अगर आप इससे रेजोनेट करते हैं कि अगर आपके चार्ट में नंबर 1 मिसिंग है, तो आप अपनी इनर फीलिंग्स को काफी हद तक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होंगे. आप अपनी इमोशंस को, अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में, अपनी कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, इनिशिएशन, कोई भी इनिशिएटिव लेने में आपको दिक्कत आती है. क्या हमारे इस ऑडियंस में सारे पार्टिसिपेंट्स में किसी के पास भी मिसिंग नंबर 1 है?
आइडियली स्पीकिंग ये 2000 के बाद वाले लोगों में पाया जाएगा। जो भी 19s में बॉर्न हुए हैं, लकीली दे हैव एटलीस्ट 1 नंबर। सो अगर आप अपने बच्चों में देखेंगे, देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि उनके पास मिसिंग नंबर 1 होगा। तो अगर आप में से कोई है, I am asking, okay, please go ahead. मैम अगर डबल 1 हो तो? नहीं, I'm talking about missing numbers. I'm not talking about repeated numbers. ठीक है, मैं अभी सिर्फ मिसिंग नंबर्स के बारे में बात कर रही हूँ। अगर किसी के पास भी मिसिंग नंबर है, वो इस चीज से रेजोनेट करते हैं तो वो बताएं। नंबर 1 मिसिंग है। मीना जी आप बताइए, आप इससे रेजोनेट करती हैं? अगर आपके पास मिसिंग नंबर 1 है, आर यू एबल टू एक्सप्रेस योर इनर इमोशंस एंड फीलिंग्स वेरी वेल? नो मैम। एब्सोल्युटली। आपको काफी प्रॉब्लम होती होगी करेज लेने में, इनिशिएशन लेने में, कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने में, वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। बहुत सोचना पड़ता बहुत ज्यादा, अपनी फीलिंग्स किसी को बता नहीं पाती एकदम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये उसी की कमी है जब आपके पास मिसिंग नंबर 1 होता है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने कंफर्म किया। ओके, आप लोग में से जिनके मिसिंग नंबर 2 है, प्लीज अपना हैंड रेज करिएगा और मुझे बताइए कि क्या आप इससे रेजोनेट करते हैं। जिनके पास भी मिसिंग नंबर 2 है, दे विल हैव लैक ऑफ सेंसिटिविटी, इंट्यूशन पावर्स लो होंगी, थोड़े से इम्पेशेंट और इम्पल्सिव हो सकते हैं, और कई बारी उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि जब वो मिस्टेक्स करते हैं, उसको ओन करने में, मतलब एक्सेप्ट करने में कि उनको प्रॉब्लम है उस मिस्टेक्स की, एक्सेप्टेंस की प्रॉब्लम है। क्या इस चीज से आप रेजोनेट करते हैं? मयंक अग्रवाल, आई एम अनम्यूटिंग योरसेल्फ, आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज बताइए। मयंक अग्रवाल। Somewhat agree. Somewhat agree. Okay. Meenakshi, go ahead and unmute yourself. No, ma'am, I am not agree. Meenakshi, can you resonate? Yes, I agree. Yes, I agree. चलिए ठीक है। मैडम। हाँ जी बोलिए सर। मैडम। हाँ जी बोलिए सर। हेलो। हिंदी में बता दो। हाँ जी, जरूर बताऊंगी, हिंदी में भी इसको कवर करूंगी। जिन लोगों के पास नंबर 2 मिसिंग होता है, उनके अंदर सेंसिटिविटी, भाव की कमी हो जाती है। वो बहुत ही इम्पेशेंट होते हैं, एक किस्म से हर काम के लिए ना उनको परेशानी होने लग जाती है कि जल्दी हो वो काम उनका। तो सही है मैम, 100% राइट। सब्र नहीं होता, संतोष नहीं 100% राइट होता। मैम। ठीक है, और गलती होने पे भी, गलती मानने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है उनको। राइट मैम, एब्सोल्युटली राइट। चलिए आगे चलते हैं। फॉर पीपल जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, एक और जने से मैं पूछूंगी सिर्फ। दिस इज सॉरी, आईफोन। हाँ जी बताइए। आईफोन, मैं आपको ही कर रही थी। हाँ जी बताइए। यस मैम, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵੀ फ्लक्चुएट करता मूड मेरा बहुत। हाँ जी, एब्सोल्युटली यही चीज है। जब आपके मिसिंग नंबर 2 होंगे तो आपको बेचैनी सी हो जाएगी। कोई भी चीज जो आपके तरीके से नहीं चल पा रही है, उसमें आपको इरिटेशन होने लग जाएगी। ਕੰਮ ਵੀ मैडम जिवें कोई करदे मन लगदा भी है, कई बारी नहीं भी लगदा। हाँ जी, ये उसी की वजह से है सर। बाकी आपके पास कुछ और भी नंबर्स होंगे जिसकी वजह से और भी प्रभावित हो जाते हैं। अपर्णा जी आप बताइए। अपर्णा। यस मैम, एब्सोल्युटली राइट, आप जो भी बोल रहे हैं वो। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। चलिए आगे चलते हैं। पीपल हु हैव मिसिंग नंबर 3, जिनके 3 नंबर मिसिंग होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। अपने ऊपर भरोसा उठ जाता है उनका। ऐसा लगता है कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। जो फुल कॉन्फिडेंस से आते हैं कि नो आई कैन डू इट, वो वाली चीज नहीं होती।
क्रिएटिविटी में कमी होने लग जाती है, सोचने की क्षमता, इमेजिनेशन पावर, कोई भी चीज को जैसे हम लोग लिखते हैं क्रिएटिविटी से लिखते हैं या बोलते हैं या ध्यान रख के बोलते हैं, वो आउटशाइन नहीं हो पाता, पूरी दुनिया के आगे नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम के अंदर कमी नजर आती है। ये नॉलेज का नंबर है नंबर 3। तो कई बारी होता है कि जिनके नंबर 3 नहीं होते उनकी पढ़ाई भी बीच में छूट जाती है। सो लेट्स सी कि कौन लोग इससे रेजोनेट करते हैं। जसविंदर आईपैड से ज्वाइन किए हैं, आप प्लीज बताएं। यस मैम, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। 3 नंबर मेरा कुआं नंबर है, 3 नंबर। हाँ जी। बट कुछ भी एक्सप्लेन करने में या किसी के सामने बात करने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये बहुत, बिकॉज देखिए गुरु का नंबर है ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो जब एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो झिझक जाएंगे, और झिझकेंगे तो आगे बोल नहीं पाएंगे और अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट पे चले जाएंगे। सब कुछ पता होते हुए भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल यही कमी आती है जब आपका नंबर 3 मिसिंग में हो जाता है। आपने कहा कि मेरा कुआं नंबर 3 है, देखिए कुआं नंबर का सपोर्ट 20% होता है हमारी लाइफ में। जी जी। ठीक है। सो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग होते हैं, कुआं नंबर हमारा एंजल नंबर है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को सपोर्ट देता है, बट ये वाली जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से सपोर्ट पूरी निकलती है वो नहीं होती। थैंक यू मैम, आपने बीच में पार्टिसिपेट करके बताया। अश्विनी ठक्कर, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बताइए। जी, आई डोंट फील कि मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बट मेरा क्या है, कभी कभी मैं सेल्फ एस्टीम हो जाती हूँ, लेकिन कि मैं पीछे हट जाती हूँ कि नहीं कर पाऊंगी या कुछ। बिल्कुल सही। या जो आपने कहा ना कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, मैम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो कवर करते हैं इस नंबर को। ठीक है, अगर आपके पास नंबर 4 होगा आपकी चार्ट में, तो और नंबर 5 होगा, इनमें से कोई भी नंबर होगा, आपको ये कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है। ठीक है। सो हमारे मेरा वो 4 और 5 भी मेरा मिसिंग है। चलिए कोई बात नहीं, आपके पास 7 है? नहीं, 7 भी नहीं है। सो वेरी गुड। मेरे पास 4 है। अगर आप बोल रहे हैं कि आपके पास 7 नहीं है, आपके पास 4 नहीं है, आपके पास 5 नहीं है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, क्यूडोस टू यू। बिकॉज देखिए ये हमारे फिर संस्कार के ऊपर आता है कि आपके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी रही है। हमेशा कभी मत भूलिएगा, जो हमारे पेरेंट्स हमें अपब्रिंगिंग देते हैं उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। मिसिंग नंबर्स अपना काम करते हैं, बट यही चीज हम आज कर रहे हैं कि हम रियलाइज करेंगे कि जिनके अंदर भी ये नंबर्स मिसिंग है, चाहे वो हमारे बच्चे हो, चाहे वो हमारे हस्बैंड हो, चाहे हमारी वाइफ हो, चाहे पेरेंट्स हो, अगर भाई बहन भी हो, अगर हम रियलाइज करते हैं हम उस चीज को कवर कर सकते हैं, हम उन लोगों को उस एरिया में एजुकेट कर सकते हैं, उसका प्रभाव को कम कर सकते हैं, हमारी परवरिश में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। सो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि 2000 में बहुत सारे बच्चों के एक नंबर नहीं होगा, 9 नंबर भी बहुत मुश्किल होगा, और आगे जाके आप समझेंगे कि 9 नंबर ना होना और 1 नंबर ना होना कितना बड़ा प्रभाव कर सकता है। 1 नंबर आपका सूर्य का नंबर है, मतलब कम्युनिकेशन पावर कितनी वीक हो जाएगी। सो हमारे को अपने बच्चों को इनकलकेट करना है, आगे उनको बढ़ाना है, जिन बच्चों में मिसिंग नंबर 1 और मिसिंग नंबर 9 होंगे। मिसिंग नंबर्स बाकी सारे देखिए रेमेडीज से पूरे हो जाते हैं, बट 1 and 9 में बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसा नहीं है कि उनके रेमेडीज नहीं है, बट ट्राई एंड बिल्ड योर चिल्ड्रन। दैट इज द पर्पस ऑफ माय वेबिनार ऑल्सो, कि अपने बच्चों को जहाँ पे भी मिसिंग नंबर्स हैं उनको इनकरेज करके उनके मिसिंग नंबर्स को पूरा करिए। ठीक है। मीनाक्षी, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, आप बताइए आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपका हैंड ऊपर है। सॉरी मीनाक्षी, or was it earlier? Okay, I have some अभी मैं सबके हाथ लोअर कर रही हूँ because I want to move on to the next one. So अगर मैं किसी से मिस कर रही हूँ, so apologies for that. हम आगे चलते हैं। Okay, so before I move on to my next missing number, it's just an offer for those people जो इस समय अटेंड कर रहे हैं इस सेशन को। अगर आप में से कोई भी मेरे से एक पर्सनल सेशन करना चाहते हैं,
you can ask me any one question at the rate of 500. Okay? और ये slot आपके लिए book होगा 10th of April के लिए. अगर आपको अपना सेशन रिजर्व करना है तो आपको आज मुझे व्हाट्सएप करना होगा. ये नहीं कि आप मुझे कल इन्फॉर्म करें, परसों इन्फॉर्म करें, नहीं. जो भी आज मुझे व्हाट्सएप करके बुक करेंगे, सैटरडे को मैं उनके साथ कॉल करूंगी. सो दिस वाज अ शॉर्ट ऑफर फॉर पीपल हु हैव जॉइन्ड द सेशन टुडे. चलिए आगे चलते हैं. मिसिंग नंबर्स. मिसिंग नंबर 4. सो जिनके भी मिसिंग नंबर 4 होंगे, कहीं ना कहीं वो रियलाइज करेंगे कि उनके फोकस में लैक हो रहा है, डिसिप्लिन की कमी हो रही है. जो भी चीज परसिस्टेंस से या पेशेंस से नहीं होती, गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है, एकदम से बम फूट सकता है. फ्रीक्वेंटली दे फाइंड देमसेल्व्स टू बी डिसऑर्गेनाइज्ड इन डेली रूटीन्स. अगर आपने मॉर्निंग में एक चीज सोच के रखा है कि आज मैंने दिन भर का ये काम करना है, जिनके 4s नहीं होते, कई बारी उनको ये बहुत दिक्कत आती है कि वो रियलाइज करते हैं शाम तक कि जो भी मैंने प्लानिंग की थी वो सब प्लानिंग हेवाई हो गई, मैंने करना कुछ और था, कर में कुछ और गया. सो डिसिप्लिन की कमी, परसिस्टेंस और पेशेंस की कमी, व्हिच मींस ऑब्वियसली गुस्सा आना, फोकस की कमी. नेहा, नाइस टू हियर. आपने बोला करेक्ट अबाउट नंबर 4. थैंक यू. दीक्षा, यू ऑल्सो अग्री. Sunil ji, but higher study completed, that's fine. Probably आपके और numbers आपको support कर रहे हैं. Ritu is saying somehow, that's fine. For people who have raised their hands, हर्ष, आप अपने आप को unmute कर लीजिए please, और आप बताइए. मैम. हाँ जी, बोले हर्ष. हेलो मैम, मेरा 2 टाइम्स है, फिर भी मुझे लैक ऑफ फोकस है, डिसिप्लिन. जो भी कोई कार्य में करने की कोशिश करूं, प्लान जितना मर्जी करूं, टाइम रात को आकर पता लगता है वो काम होया ही नहीं, बाकी सभी काम हुए. ठीक है, आपके कुछ ज्यादा ही मिसिंग नंबर्स दूसरे हैं, आपके पास नंबर 5 नहीं होगा. हाँ जी, है नहीं गई. हाँ, बट एक चीज आपको रेकमेंड करती हूँ, आप अपने पावर को यूज करिए, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ी पावर है. जब आप कहते हैं ना डबल फोर का अपना एक स्ट्रगल है. आपको आपकी लाइफ की जर्नी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स मिल रहे होंगे, बट अपनी पावर को ना रियलाइज करने की भी कोशिश करिए. ये मेहनतियों का नंबर है. नंबर 4 आपको काम कराएगा विद हर्डल्स, आपके हाथों के काम लेगा, तो आप उसमें लगे रहिए, आपकी ये सारी कमी पूरी हो जाएगी. ठीक है, ये मेहनत कर ही जाऊं. बिल्कुल. हम सब ने कर्म करने हैं. नंबर 4 वालों के लिए अनफॉर्चुनेटली अगर ये आपका ड्राइवर और कंडक्टर है तो स्ट्रगल बहुत है आपके लिए. यही है मेरे ड्राइवर और कंडक्टर में. हाँ जी, हाँ जी. रितु जी, मैं आपको अनम्यूट कर दिया है, आप प्लीज बताइए. मैम, आपने ये बताया कि गुस्सा बहुत आता है. हाँ ये जी, बिल्कुल बात सही है, हाँ बट जी, बाकी आपने दूसरे बोला है कि डिसऑर्गेनाइज्ड इन डेली रूटीन. हाँ जी, इसमें मैं डिसएग्री हूँ. दैट्स मैं फाइन अपना मैम. सब पूरा कुछ नहीं हाँ हो सकता सब में. ये एक जनरल ओवरव्यू है. जनरली देखा जाता है, अगर आपके पास नंबर 8 होगा ना, तो वो आपकी 4 8 की है. पावर, हाँ, वो आपकी 4 की पावर को कवर करता है. ठीक है. ओके. कई बारी हम लोग जाने या अनजाना, देखिए हम लोग स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं कि जब भी किसी के मिसिंग नंबर्स होते हैं, क्या क्या असर होता है उनका. कोई नंबर्स हमारे को ओवर पावर करते हैं, जैसे 4 को 8 ओवर पावर करता है. ओके. लाइफ विल नॉट बी इजी फॉर यू, बट फिर भी आप ऑर्गेनाइज्ड है, बिकॉज 8 नंबर क्या है, मिरर ऑफ 4, शनि का नंबर है. ठीक है, आपसे कर्म करवा रहा है, मोर डिसिप्लिन, मोर ऑर्गेनाइज्ड वाली कमी को पूरा कर रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, तो इसीलिए आपको 4 से आपने कहा कि मैं डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ. हाँ हाँ. एक मैम, जैसे गुस्से के लिए क्या करना चाहिए, रेमेडी कोई? वो बाद में बात करेंगे रितु जी, अभी वरना ओके जी. यहीं पे सेशन रह जाएगा. थैंक यू, थैंक यू. यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. चलिए आगे चलते हैं. सो नाइस. आप लोग देखिए आ रहे हैं, आगे बढ़कर चीजें बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं. इससे बढ़िया वेबिनार नहीं हो सकता है. हर्ष जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? 5 मिसिंग है मेरा. हाँ जी, 5 मिसिंग है. हाँ जी, हर्ष जी, बहुत लोगों के 5 मिसिंग होते हैं. अच्छे होते हैं लोग जिनके पास 5 होते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं चीजें को बैलेंस कर जाते हैं. चलिए, 5 मिसिंग हो जाए किसी की लाइफ में, उनके अंदर कहीं ना कहीं जाके लैक ऑफ मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम,
चेंजेस में मेक द पर्सन अनकंफर्टेबल। आपके ना घर में कोई चीज का बदलाव करने की कोशिश किया जाए ना, अगर एक शोपीस भी उठाकर दूसरी जगह पे रख दिया जाए, या आपके जो जहां पर भी सामान पड़ा होगा कहीं पे उठा के रख दिया जाए, जिन लोगों के मिसिंग नंबर 5 होते हैं वो ना परफेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, हर चीज को ना कोशिश नींद करते नहीं हैं। आती मैडम रात को हाँ जी, अगर मैं कोई प्लेस चेंज कर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जिनके मिसिंग नंबर 5 होते हैं जनरली आप नोटिस करेंगे कि आपको या तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी या कफ रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज हो सकते हैं। यस आगे आगे पूछते हैं ओप्पो रेनो 2, प्लीज Yes, गो अहेड। ma'am. Agree with your missing number 5, lack of communication skills, and हाँ जी, I have a acidity problem. यस आप ध्यान रखिएगा उस चीज का, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज मिसिंग नंबर 5 से होते हैं। बट मैम मेरा जो नंबर नेम है उससे 5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कवर करता है, वो सपोर्ट देता है। हाँ जी, वो सपोर्ट देता है। इट्स गुड फॉर यू अगर आपके नेम से आपको वो 5 आ रहा है। बट देखिए नेम की अपनी एक थ्योरी है, प्लीज उसको ऐसे न मत लीजिए कि मेरा नेम नंबर 5 पे है मुझे पूरा सपोर्ट दे रहा है। नेम नंबर हैज टू बी एट द राइट एनर्जी लेवल, अदरवाइज वो नहीं सपोर्ट दे रहा। जो हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे को 5 का सपोर्ट आ रहा है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द राइट एनर्जी नंबर, सो ये मत भूलिएगा। ओके मीनाक्षी, मैं आपको मौका दे रही हूँ, प्लीज गो अहेड। मैडम मीनाक्षी, आई थिंक आप बात करना चाह रहे थे। हेलो मैडम। हाँ जी सर, बोलिए आप बोलिए सर। हाँ मेरा 5 नंबर है। ओके, फिर भी मुझे एसिडिटी और कफ का प्रॉब्लम है। आपको एसिडिटी और कफ का प्रॉब्लम है डिस्पाइट यू हैव अ 5 नंबर सर, वो कुछ और रीजन से भी हो सकता है, बट जनरली जिनका 5 मिसिंग होता है उसका एक रीजन है, आपका सेंटर बॉडी का एरिया मिसिंग है। अगर हमने इसको लोशो ग्रेड में बोला है ना कि ये आपका बॉडी का सेंटर हिस्सा है, तो वो आपका सेंटर हिस्सा मिसिंग है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अगर आपको ये नंबर होने के बावजूद भी प्रॉब्लम है, देन यू हैव जेन्युइनली अ मेडिकल इश्यू, आपको दिखाना चाहिए। ओके एसएस, आई डोंट नो योर नेम, आप प्लीज पूछिए क्या बोलना चाहते हैं। Yes, I'm completely agree with the missing 5 number. थैंक यू सो मच। लास्ट ले रहे हैं संतोष महेश्वरी जी, आपने कुछ बोलना है। हाँ मैम, ये 5 नंबर को कौन सा नंबर है जो ओवर पावर कर देगा? क्यों, आप बताइए आपका ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेट हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ। ये जो कफ एसिडिटी मेरे लोशो ग्रिड में ही मिस है। हाँ जी, और ये सब प्रॉब्लम है मेरे साथ में, एसिडिटी कफ प्रॉब्लम, मोटिवेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, बट लेक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल लिटिल बिट बोल सकते हैं। कोई नहीं मैम, अनफॉर्चुनेटली 5 की रिप्लेसमेंट सिर्फ एक रेमेडी कर सकता है आपके लिए, बाकी और कुछ कोई नंबर नहीं करता। 5 इटसेल्फ में बहुत बड़ा नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है। काफी लोग इसकी वजह से लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स झेलते हैं। ऐसा नहीं है कि नंबर 5 वाले नहीं झेलते, उनकी अपनी लाइफ की स्टोरी है। चलिए आगे चलते हैं। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। नंबर 6, जिनके भी चार्ट में मिसिंग नंबर 6 होते हैं, पॉसिबिलिटी है कि उनकी लाइफ में उनके किसी एक पेरेंट के साथ उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली मैंने जो देखा है, हो सकता है ये डिफरेंट हो, मैंने जो जनरली देखा है वो फादर के साथ प्रॉब्लम होती है बच्चों की। मिसिंग नंबर 6 वाले अपनी फीलिंग्स को भी हाइड करते हैं, पूरी तरह से अपनी प्रॉब्लम और अपनी रिलेशनशिप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और अनरीजनेबल होप्स होती हैं उनकी परफेक्शन की। सो यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम शुरू होती है, जहां पर वो मिसिंग नंबर्स होते हैं और उन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लाइफ से होती है उनकी। सर मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोल दिया, प्लीज बताइए। मैम इसमें से कुछ भी नहीं है ऐसा। नहीं है, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है सर? अगर I have the missing number 3 and 6. Both have the missing numbers, but that is not be matched anything. That's absolutely fine, sir. संजय जी, हमेशा मैंने पहले भी बोला है, मिसिंग नंबर्स अपना काम अपने एरिया में करते हैं। If there are numbers that are empowering you
through your other numbers, that is very nice. जो हम लोग हमारे परवरिश होती है, that is a बहुत बड़ी देन है, तभी ये मिसिंग नंबर्स के ऊपर ये वेबिनार हो रहा है, बिकॉज आप जब अपने बच्चों में ये चीजें देखेंगे या किसी और पार्टनर में देखेंगे, एटलीस्ट आप रियलाइज करके उसको कवर कर पाएंगे. दैट इज द पर्पस. इसके अंदर एक चीज तो अगर मैं इसके अंदर आती है जो मैं फील करता हूँ कि एज ए लग्जरियस के अंदर जो लाइफ होती है वो चीज नहीं है बस. बिल्कुल सर, देखिए शुक्र है ना, आपने बिल्कुल सही बोला. शुक्र का नंबर अगर नहीं होगा तो वो लग्जरी लाइफ में मिसिंग रहेगी. ये तो ऑब्वियस है बोलना. नंबर से डिनोट करिए कौन सा प्लैनेट है. वो प्लैनेट का अपनी एक महत्व है लाइफ में. अगर वो नहीं है तो ऑब्वियसली वो चीज भी कमी पूरी देगा ना. ऐसा नहीं है, अगर आपके पास बाकी कुछ नंबर्स हैं वो अपनी पावर आपको दे रहे हैं, बट हाँ लग्जरी फैक्टर नहीं देते. वो चीज मैं मानती हूँ आपकी. ऑल्दो हर चीज के में प्रॉब्लम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम या अगर मनी मैटर, नथिंग इज हैव अ प्रॉब्लम, बट कहा जाए कि एक ऑसम सी लग्जरियस लाइफ हो, वो चीज नहीं है मतलब. हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मानती हूँ जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल मानती हूँ. समिधा आहूजा जी, मैं आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस मैम, गुड इवनिंग मैम. वेरी गुड इवनिंग टू यू मैम, बोलिए. मैम मेरे तो बहुत सारे नंबर्स मिसिंग है, बट अभी नंबर 6 की बात हो रही है, तो मेरा भी रिलेशंस में प्रॉब्लम है एंड लग्जरी लाइफ नहीं मिसिंग है मैम. पर भले पैसा होने के बाद भी मतलब सब कुछ नहीं मिल सकता है मैम. ये प्रॉब्लम हो रही है. एब्सोल्युटली मैम. एंड मैम रिलेशंस में बहुत प्रॉब्लम होती है मैम. किसी के संग मतलब थोड़े दिन रहता है, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है मैम. आई अंडरस्टैंड दैट. एंड मैम मेरे 2, 4, 5, 6 एंड 8 नंबर मिसिंग है. ओके. एंड तो मैं मेरे उसमें लोशोग्राम में ओनली 3 एंड 7 बहुत ज्यादा है मैम. अच्छा ठीक है, वो अपनी चीजें दे रहे हैं लाइफ में, अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. चलिए, थैंक यू समिता जी, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग. गैलेक्सी M31. मैम मेरा भी नंबर 6 मिसिंग है, बट हुआ नंबर मेरा 6 है. लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आपने जो बताया कि पेरेंट की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फादर, तो बिल्कुल मैम 100% एग्री हूँ मैं. मेरे फादर 95 में छोड़ गए थे हमको. आई एम सॉरी फॉर दैट. या एंड सारा कुछ ये मेरे साथ मैच कर रहा है, बट यही है कि बट उसके बावजूद क्योंकि 6 हुआ नंबर भी है, फिर भी ये चीजें रही मेरे साथ. मैम देखिए, कुआ नंबर इज जस्ट 20% कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ. कुआ नंबर इज, आप उसको डेट ऑफ बर्थ में बिल्कुल निकलता है, एंड इट इज एन एंजल नंबर. वो नंबर मैनिफेस्टेशन का नंबर है मैम. उसको आपको ना अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करना चाहिए, उसको ग्रिड में हिसाब से नहीं. सो अगर आप कुआ नंबर में कभी भी कोई भी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारा एंजल नंबर है, वो एंजल नंबर ने हमारी मैनिफेस्टेशन पे काम करना है. अगर आप उस नंबर पे अपना विश्वास रख के कोई भी चीज बोलेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ऑर्गेनाइज होगा. बशर्त ये है कि नंबर 1 आपको उस एंजल नंबर पे कोई शक नहीं करना. नंबर 2 है आपको पूरा भरोसा करना है उसके ऊपर. और नंबर 3 आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. मतलब कहीं पे आपके अंदर कमी नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर भरोसा रखने की, तो वो काम करेगा आपके लिए. ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल ये एक वर्ड ट्रू है. नहीं मैम, मैं जानती हूँ बहुत लोगों के लिए ट्रू होगा. कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं मैम, परवरिश की वजह से भी फर्क पड़ता है. और देखिए, ईश्वर ने हर किसी के ऊपर कृपा रखी हुई है, तो वो तो नोबडी इज अ गॉड, इवन आई एम नॉट अ गॉड. ठीक है, ये साइंस है, ये हम सब ने लर्न किया हुआ है. सो इसलिए उस साइंस के बारे में बात कर सकते हैं, बट इट कैन डिफर. सारे 100% करेक्ट नहीं हो सकता, या 100% लोग नहीं बोलेंगे कि बिल्कुल सही है. जी मैम. ठीक है, थैंक यू सो मच मैम फॉर पार्टिसिपेटिंग. परीक्षित मैम. हाँ जी बोलिए. मैं उष्मा बोल रही हूँ. आप इम्पैक्ट मिसिंग नंबर्स जो बता रहे हो ना, उसमें से 1, 2, 3 वापस रिपीट कर पाएंगे प्लीज? मैंने अभी ज्वाइन किया, आई एम सो सॉरी. कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, मैं रादर देन रिपीटिंग ना, यूट्यूब में ये अवेलेबल होगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगी. आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर पे. वैसे ग्रुप में मैं ये शेयर कर दूंगी जितने भी पार्टिसिपेंट्स है. यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू दी वीडियो ऑन यूट्यूब, आपको अवेलेबल मिलेगा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके, लेट्स मूव अहेड. Okay, before let me just take this opportunity to share something about
the upcoming program और उसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं because there are more missing numbers and कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ about certain numbers जो specific numbers combination है जो किसी की लाइफ में impact कर रहे होंगे. So वो भी आपको information दूंगी. So don't drop off just by thinking कि ये आ गया है तो आगे कुछ नहीं, आगे बहुत कुछ है. This is just to give you an update कि कल से I'm starting a new batch on numerology. This is on Monday, Wednesday and Friday, thrice a week. ये जो बैच है रात को 8:30 से 10 बजे तक का होगा क्लासेस. And obviously I said 3 times in a week. ये certified course है. The fees is just 6,666, जिसमें 5,100 rupees का worth आपको एक चार्ट, आपका individual numerology chart में दूंगी. ये about 46 to 48 pages and it can go up to 70 also depending upon your date of birth. ये चार्ट अवेलेबल आपको absolutely free of cost. You will have a separate session with me जहाँ पर आपको कोर्स के दौरान, कोर्स के बाद मैं आपसे इंडिविजुअली लाइज करूंगी to clarify any points. आप मेरे साथ और मेरे बैच में हर बारी कनेक्टेड रहेंगे. So this is just to give you an update. Anybody is interested in this group, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मुझे मालूम है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन किए हुए हैं अभी वेबिनार में आज. बट नोइंग द टाइम मैं कोशिश करूंगी कि वो आपसे बात कर सके इफ दे आर अवेलेबल टिल दैट टाइम जब हम एंड कर रहे होंगे. बट जस्ट टू रिकैप, कल से ये सेशन शुरू हो रहा है 5 अप्रैल से 3 times in a week. चलिए आगे चलते हैं. एंड एनीबडी इंटरेस्टेड आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है कि इस कोर्स में क्या कवर हुआ जा रहा है, आप एब्सोल्युटली एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हैं. जो भी इस एक एक टॉपिक इधर लिखा गया है वो सारा कवर हो रहा है. आप मेरे किसी स्टूडेंट से भी बात करना चाहें, फील फ्री, मुझे बताइएगा. मैं अपने स्टूडेंट से बात करके आपको कनेक्ट कर दूंगी. If you need to take any kind of feedback, there is no harm in taking that feedback. Sufficient information है. Mr. Day, if you can, आपका नाम आ रहा है, please avoid that. And it is a complete update for a numerologist. आप एक एक चीज इसमें कवर कर रहे होंगे, from predictions to calculations, everything, every information is there in detail. Harshita, okay, Harshita, please go ahead. Harshita is my student. So kind of you, Harshita. आप अपने आप को unmute कर सकते हैं. Thank you, madam. How are you, madam? Very well, Harshita. Thank you. Just to introduce Harshita, quickly अगर आप बात करना चाहते हो, because I would want कि हम लोग इस सेमिनार को आगे करें. Quickly go ahead. आप जो शेयर करना चाहो. मैम, जो लोग भी ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने खुद ये न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप अटेंड किया है प्रिया मैडम से. एंड मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने उनसे सीखा है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी यहाँ पे दिया है वो तो वो सब डिटेल में आपको समझाएंगी ही, और उसके अलावा भी उनके पास आपको देने के लिए इतना नॉलेज है, इतना शेयरिंग वो करेंगी कि एटलीस्ट आप अपना और अपने फैमिली का तो सबसे पहले ठीक कर ही सकते हैं, है ना, प्रोफेशनली भी स्टार्ट कर सकते हैं. वो लेवल तक वो आपको लेके डेफिनेटली जाएंगी. थैंक यू सो मच हर्षिता फॉर सेइंग इन बिटवीन. थैंक यू. गुड लक है ना, तो ही आप ये वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं, यही मेरा मानना है. प्रिया मैडम तक अगर पहुंचना है तो कुछ ना कुछ आपका लक फैक्टर है, तो ही आप वहां तक पहुंचोगे. थैंक यू सो मच हर्षिता. दिस इज रियली अ प्लेजर. आप जो बोले, थैंक यू सो मच. रेणु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? रेणु जी, रेणु गुप्ता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? रेणु गुप्ता जी, सॉरी, रेणु गुप्ता, सॉरी. चलिए कोई बात नहीं, लेट्स मूव अहेड. अगर किसी को भी कोर्स रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन लेनी होगी, प्लीज फील फ्री, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं सेपरेटली. somebody wanted, ओके, क्वेश्चंस बाद में ले लूंगी प्लीज. लेट्स मूव ऑन, सबका टाइम प्रेशियस है. ओके, नंबर 7, अगर किसी का भी नंबर 7 मिसिंग होता है चार्ट पे, इंक्लाइन टू बी इनकंसिडरेट टू अदर पीपल. होता क्या है, नंबर 7 ये भी ओकल्ट साइंस का एक नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का एक नंबर है.
अगर ये नंबर मिसिंग होता है हमारी चार्ट में, हम दूसरे की फीलिंग्स में समझने में थोड़ी सी कमी आ जाती है। यहाँ पर यही इसका मतलब है, इनकंसिडरेट टू देयर फीलिंग्स। जो दूसरों की फीलिंग्स है इतना कंसिडर नहीं करते, कई बार हर्ट कर जाते हैं और उसकी वजह से हम रियलाइज नहीं करते। आई होप मेरा इंटरनेट बीच में अनस्टेबल आ रहा था। सो सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टेंड्स टू बी कंसिडरेट टू अदर्स, उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है, या किसी जने को कभी कोई हर्ट हो जाए, यू टेंड टू अपोलोजाइज या यू टेंड टू गो हेड एंड आफ्टर सम टाइम एक किसी को पैसिफाइंग फीलिंग देते हैं, वहां पर ये कमी आती है। लिटिल इंटरेस्ट, लिटिल और नो आई शुड से, कई लोगों के लिए इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी इज नॉट कि ईश्वर में नहीं मानते हैं, जिनके पास भी नंबर 9। अब आ रही है सर? साउंड नहीं आ रहा। अब आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है मैम, आ रही है। परफेक्ट, ओके। सो अगर आपके पास नंबर 7 मिसिंग होगा, आपके पास जो मेटाफिजिकल साइंसेस है जैसे ऑकल्ट साइंसेस है, अगर नंबर 3 होगा तो भी आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट होगा स्पिरिचुअल साइंसेस में या एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 7 वाले भी जिनकी नहीं होता, उनकी भी कहीं ना कहीं पढ़ाई बीच में छूट जाती है। उसके अलावा नंबर 9 अगर किसी के पास हो तो वो भगवान में बिलीव करता है, ऐसी बात नहीं है, बट स्पिरिचुअलिटी इज अ डिफरेंट पाथ। आप मेटाफिजिकल स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात कर रही हूँ कि जहां पर आप ऑकल्ट के अंदर पूरी चीजों को नहीं समझ पाते, इफ यू डोंट हैव अ 3 and 7 बोथ। बाकी इंटरेस्ट होता है बहुत लोगों का दूसरे नंबर्स की वजह से, एंड ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास नंबर 7 नहीं है या नंबर 3 नहीं है तो आप ऑकल्ट साइंसेस में नहीं आ सकते। यू कैन डेफिनेटली कम, देयर आर वेरियस नंबर्स दैट सपोर्ट यू, इट ऑल डिपेंड्स, एंड दीज आर फ्रेंडली नंबर्स, सो वो आपको हेसिटेट नहीं करते रोकने में। बट टू समराइज व्हाट आई वांटेड टू से, अगर किसी के पास नंबर 7 नहीं होता उनकी चार्ट में, वो दूसरों की फीलिंग्स को समझने में उनके पास एक कमी होती है। सो आप में से कोई इसको रेसोनेट करता है या इट इज कंप्लीटली नहीं, ऐसा होता ही नहीं है? इट विल बी इंटरेस्टिंग टू हियर दैट। परफेक्ट। आलोक जी? यस मैम, परफेक्ट मैम, जो आपने बताया वो परफेक्ट है। सही है। थैंक यू सो मच। जसविंदर जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे या आप बोल चुके हैं? जी, मैं बोलना चाहूंगी, मेरे पास 3 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। मैं दूसरों के दुख को बहुत अच्छे से समझती हूँ। हाँ जी। ऐसी मैं जैसे 7 नंबर में आपने कहा कि दूसरों के फीलिंग्स को नहीं समझते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझती हूँ और दिल पे ले जाती हूँ उनकी फीलिंग्स को। आपके पास नंबर 2 बते होंगे जी जसविंदर जी, आपके पास 2s बते, कितने हैं 2s या कितने 1s? मेरा 2 सिर्फ एक कंडक्टर नंबर से आ रहा है 2। बिल्कुल, यही बहुत बड़ी बात है। आपको उससे रियलाइज होगा जब आप इसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्यों आपके पास वो फीलिंग है, बिकॉज नंबर 2 चंद्रमा का है। आप उससे रियलाइज करिए, वो इमोशंस का, मोशन एंड इमोशन दोनों का प्रभाव, फुल ऑफ इमोशन, एब्सोल्युटली फुल ऑफ इमोशंस, एब्सोल्युटली जी। और बाकी स्पिरिचुअलिटी की भी बात करें तो वो भी मैं नहीं मानती हूँ। मैं भगवान पे बहुत विश्वास नहीं, भगवान नहीं है, रखती ये वाला चीज भगवान नहीं है जसविंदर जी। 9 नंबर से भगवान की भक्ति आती है। जिनके पास भी 9 नंबर होता है उनके पास रिलीजन और रिलीजियस दोनों होना है। यहाँ पर मेटाफिजिकल की बात हो रही है कि वहां पर थोड़ा पूरा नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूंगी ना आप एक रिसर्चर बन जाए, तो आप बोलोगे नहीं मैं रिसर्चर नहीं बन सकती, मुझे इस चीज में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। ये वो वाली बात कर रही हूँ। आप रिसर्चर एनालिस्ट नहीं बन पाओगे किसी चीज में बहुत ज्यादा। वैसे आप इंफॉर्मेशन तो क्या मैं अकल्ट साइंस में आगे नहीं बढ़ सकती? बिल्कुल बढ़ सकते हो। मैंने आपको अभी क्या बोला है, इट डज नॉट से कि अगर नंबर 7 और नंबर 3 नहीं होता कि कोई इंसान ऑकल्ट साइंस में नहीं जा सकता। ऑकल्ट साइंस एक कंपैटिबल नंबर टू एवरी नंबर है। आवाज नहीं आ रही सर, शायद आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आ रही है क्योंकि कहीं जाकर ना मुझे यहाँ से इशू नहीं दिख रहा कि ना सुनने में ना बोलने में। जसविंदर जी, आपको कंप्लीट करना चाहूंगी।
स्पिरिचुअल साइंसेस जो हम लोग बात कर रहे हैं अभी ऑकल्ट साइंसेस की, ये हर एक नंबर के लिए कंपैटिबल है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसके लिए कंपैटिबल नहीं हो, बिकॉज ये फ्रेंडली नंबर्स हैं। ठीक है, सो जहां तक ईश्वर का है, नंबर 9 है, ईश्वर में भरोसा बिल्कुल होगा आपका। जी ठीक है, थैंक यू मैम। यू वेलकम जसविंदर जी। रितु जी आप बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ मैम, ये ऐसे मेरी डॉटर के पास ना नंबर 3 है, ना 7 है, और ना ही नंबर 2 है। अभी आपने जैसे जसविंदर जी से बात कर रहे थे, हाँ जी। बट उसके अंदर आपने जैसे बोला कि दूसरों की फीलिंग को समझने की नहीं है, बहुत ही सेंटिमेंटल है वैसे वो। कोई बात नहीं मैम। देखिए ये मैंने आपको पहले भी बोला, बहुत सारे नंबर से हम लोग कवर कर जाते हैं द वे वी आर अपब्रिंगिंग आवर चिल्ड्रन। ठीक है, एंड देयर आर सर्टेन रिपीटेड नंबर्स। आप ये मत लेके चलिए कि सिर्फ नंबर्स हट जाएंगे तो पूरी चीजें खत्म है। ये अपने नॉइजेस कर रहे हैं, ये आपकी चार्ट में अपने नॉइज अपने टाइम पे करेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ जर्नी में, बच्चे की लाइफ जर्नी में करेंगे। तभी आप लोगों को बोल रही हूँ ना, एज अ पेरेंट आप लोग अच्छे मेंटर बनिए कि जहां पर भी कमी है उसको कॉशन होकर कवर कर सकते हैं, उनकी परवरिश को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीजें हैं, बच्चों के पास या आपके किसी के भी चार्ट में रिपीटेड नंबर्स होते हैं। जब आपके पास एक नंबर खाली होते हैं ना, तो कोई नंबर डबल होते हैं। 999 है, 111 है। करेक्ट। सो ये वाले जो नंबर्स है ना, 999 और 111, ये अपने अपने प्रभाव दिखाते हैं, कुछ थोड़े से नेगेटिव में और कुछ पॉजिटिव में। सो इट इज, डोंट टेक ओनली बाय मिसिंग नंबर्स टू से कि ये दिख रहा है तो इसलिए मैं ऐसे नहीं हूँ। 100% नहीं हो सकता वो पॉसिबल। ठीक है, हम सारे एक तराजू में एक तरफ नहीं आएंगे अगर हमारे पास मिसिंग होंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। जो हमारे रिपीट नंबर्स है वो बहुत सारे कवर कर रहे होते हैं हमारे को। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम मैम। प्रिया मैम, हाँ जी बोलिए। मैम एम आई ऑडिबल मैम? यस यू आर ऑडिबल, एब्सोल्युटली। ओके मैम। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है मैम कि जैसे मेरा कंडक्टर नंबर 2 है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि मेरा चंद्रमा वो बहुत वीक है। मैम इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, वो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हो, वो नक्षत्र आपके में बात करते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। न्यूमरोलॉजी में आप जिस प्लैनेट पे बर्थ लिए हैं वो उसमें भी नजर आएगा, बट एस्ट्रोलॉजी में अलग साइंसेस से आपको बताया जाता है कि लगना क्या है, नक्षत्र क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। यहाँ पर हम जो भी बात कर रहे हैं ना, एक वेरी सिंपल लैंग्वेज में, तभी एस्ट्रोलॉजी समझने में आपको टाइम लग जाएगा, बट एक न्यूमरोलॉजी समझने में आपको सिर्फ 15 दिन चाहिए, और आप उसमें परफेक्शन से बाहर निकलेंगे और उस चीज को समझ पाएंगे। अगर आप लगना, ग्रह, हाउसेस इनकी बात करेंगे तो ये आपको सालों साल निकल जाएंगे समझने के लिए। ठीक है, दैट्स द ओनली रीजन। मेरा मतलब है कि जैसे कि 2 नंबर मेरे चार्ट में आ रहा है, हाँ चंद्रमा का मैं इफेक्ट, अच्छा इफेक्ट होना चाहिए। देखिए, वो अच्छे इफेक्ट की बात नहीं होती, चंद्रमा का अपना पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आपके पास चंद्रमा है तो मैं आपको बोलूंगी ना कि सौरभ जी आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स हैं, आप अग्री करोगे मेरे से कि हाँ जी। अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपको आपका कोई एक दोस्त बनेगा तो जिंदगी भर के लिए दोस्त बनेगा, अगर दुश्मन बनेगा तो वो जिंदगी भर के लिए बनेगा। फिर मैं आपको बोलूंगी कि क्या आप एकदम अपना डिसीजन पावर ले पाएंगे या आपको कोई और चाहिए अपने डिसीजन पावर के लिए। ये आपकी हो गई कहीं पे ऑफ क्वालिटीज। बट अगर मैं आपकी क्वालिटी बोलूंगी तो ये भी तो बोल रही हूँ कि आप दोस्त बनाते हो बहुत अच्छे, आप इमोशनली बड़े स्ट्रांग हो, आपके अंदर बहुत अच्छी सेंसिटिविटी है, ये आपकी पॉजिटिव साइड्स भी तो बोल रही हूँ। सो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करेंगे ना कि वो नीच का है या उच्च का है, वो एस्ट्रोलॉजी का है, क्योंकि वो नक्षत्र, लगना, ग्रहों के बारे में बात होती है, उनके घरों के बारे में बात होती है, विच इज नॉट देयर इन न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में आपको सारे फैक्ट्स होंगे इन साइंस ऑफ क्या पॉजिटिव है, क्या अपॉर्चुनिटी एरियाज है। तो जो मेरे पॉजिटिव होंगे तो वो अच्छी बात है, जो मेरी अपॉर्चुनिटी एरिया उस पर मैं वर्क करूंगा तो मेरा कवर हो जाएगा। अब वो वर्क क्या करूंगा, या आप रेमेडी करोगे या कॉन्शियसली आप उसको कवर करने की कोशिश करोगे। कॉन्शियसली होता नहीं है, सो रेमेडी इवेंचुअली करनी पड़ती है। क्लियर है? ओके मैम। हेलो मैडम। हेलो सर। मैडम रविराज बोल रहा हूँ। हाँ जी रविराज जी बोलिए। मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 6 है। हाँ जी। मेरे लोशो ग्रिड में खाली 4 नंबर मिसिंग है। ओके सर।
1.5 साल से मैं जॉबलेस है, जॉब भी नहीं मिल रहा किधर। हाँ जी सर। ट्राई कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ रेमेडी है क्या मैडम? हाँ सर, मेरे से आप सेपरेटली बात कर लीजिएगा सर, बिल्कुल है इस पे। ठीक है, ओके मैडम, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 8, अगर किसी का नंबर 8 मिसिंग होता है, काफी लोगों में देखा गया है कि इनको फाइनेंशियल मैटर्स को मेंटेनेंस करने में प्रॉब्लम आती है ना। अगेन कईयों के मैंने देखे हैं नंबर 8 होने के बावजूद वो ऐसे ही होते हैं कि उनमें भी फाइनेंशियल मैटर्स को संभालने में कमी आती है। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, दैट इज आवर अपब्रिंगिंग। बट यूजुअली जो देखा गया है, मिसिंग नंबर 8 में बहुत सारे लोगों को अपने हिसाब किताब में, फाइनेंशियल मैटर्स में, मनी मैटर्स में, मनी मैनेजमेंट बोलूंगी, कमी आ जाती है। लेस एम्फेसिस ऑन मनी, पावर एंड मटेरियल पोजीशन, मतलब वो संभालना भी चाहे तो भी उनके खर्चे हो जाते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस आ जाती हैं और उनके खर्चे हो जाते हैं। और कई बारी तो ऐसा होता है कि उनको पता भी नहीं होता और उनके खर्चे हो रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि ये खर्चे मेरे आ कहां से रहे हैं, अपने आप ही बैठे बैठाए मेरे ऊपर खर्चे आ जाते हैं। Anybody who resonates with this? कृष्ण मोहन जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस फीडबैक। आप, मैंने अभी खोला चैट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आप अग्री कर रहे हैं। ललित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम मेरे तो 3 नंबर भी मिसिंग है, 5, 7, 8। ओके सर, आई एम बिट कंफ्यूज्ड, क्या बोलूं? कोई बात नहीं सर, आप समझिए कि आपके बाकी सारे खाने ना आपके कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, until unless you are struggling sir, then definitely you need to bother about it और आपको उस अकॉर्डिंगली रेमेडीज करनी चाहिए। स्ट्रगलिंग तो मैम है। सर आपका ड्राइवर नंबर क्या है? 4। हाँ बस सर उससे आपने बोल ही दिया। ड्राइवर भी 4 है, कंडक्टर भी 4 है सर। इधर पूरे प्रेजेंस में अगर कोई 4 वाला ये मुझे कह दे कि उसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है, मैं बोलूंगी वो बहुत ब्लेस्ड इंसान है, बिकॉज ड्राइवर 4 इज अ स्ट्रगलिंग नंबर। हर्डल्स, जो भी जिंदगी में काम होगा वो हर्डल से ही होगा। अपर्णा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? यस मैम, मैम 8 नंबर मिसिंग है। हाँ जी। तो मैम मतलब मनी है भी नहीं और मनी कम भी नहीं पड़ता है, मतलब कट टू कट मनी हमेशा रहता है बस। हाँ जी, हाँ जी। तो सेविंग भी नहीं होता है और एक्सेस भी नहीं है। वो 8 नंबर मिसिंग है। हाँ एब्सोल्युटली आप करेक्ट बोल रहे हैं। एक्चुअली मनी मैनेजमेंट नहीं करना आता हमें। जब 8 नंबर मिसिंग होता है, मैं उनमें से हूँ जिनका 8 नंबर मिसिंग है। कॉन्शियसली भी कई बारी पता ही नहीं चलता कि एक्सपेंडिचर कैसे हो रहे होते हैं। राइट मैम, राइट मैम। तो मैम इसके लिए 8 नंबर मिसिंग के लिए क्या है उसका पावरफुल नंबर? पावरफुल नंबर नहीं है, देयर आर सर्टेन नंबर्स जहां पर मिसिंग हो। द ओनली थिंग इज विद स्मॉल वैदिक रेमेडीज यू कैन ट्राई एंड कवर इट अप। ऐसा नहीं होता कि वो नंबर को ओवर 8 नंबर शनि का नंबर है, शनि से ऊपर किसी की पावर नहीं है। देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लेने पे आता है तो सारा कुछ ही लेकर जाता है। ठीक है, यस मैम। अजय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अजय जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ मैडम, मैं यही बोलना चाह रहा था कि मेरा 8 नंबर मिसिंग है। हाँ जी सर। और जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल, फाइनेंशियल मैटर खुद के जो होते हैं ना, हाँ जी, वो बड़े अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं और संभाल नहीं पाते हैं, अपने को पता ही नहीं चलता, खर्चे होते रहते। हाँ जी, हाँ एग्री जी। करता हूँ मैडम से। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। आशुतोष जी, यू आर सेइंग 80% अग्री एज माय कुआ इज 8 and 20%। ओके, ठीक है, एब्सोल्युटली। देखिए, कुआ अपना बेनिफिट करता है, याद रखिएगा। कुआ आपको मैनिफेस्टेशन पे बेनिफिट करता है। ये आपका एंजल नंबर है, ये हमेशा आपके लिए वर्क करेगा, बट इसकी लोशो ग्रिड में कोई वैल्यू नहीं है। 20% ये डेफिनेटली आपको कंट्रीब्यूट करके जिंदगी में कुछ ना कुछ देता है। इसको बस इस्तेमाल ठीक तरह से करिए। ये आपका खुद का नंबर है और पीपल हैव बीन ब्लेस्ड बाय यूजिंग कुआ नंबर। आपने प्लीज अपने लेफ्ट रिस्ट पे लिखिए इसको विद अ ग्रीन पेन, उसको सर्कल करिए। उस पे जो भी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं बहुत बिलीफ से करिए और ये अपना काम खुद करता है। जहां पर आपका शक आ जाता है ना, तब ये काम नहीं करता।
हमेशा याद रखिएगा। ओके, मिसिंग नंबर 9, ये चीज मैंने आपको बोली थी पहले भी, 2000 वाले बच्चों में आपको मिसिंग नंबर 1 एंड मिसिंग नंबर 9 ये बहुत मिलेंगे। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल फॉर पेरेंट्स जिनके बच्चे इस टाइम पीरियड के हैं। मिसिंग नंबर 9 क्या है? ये भी एक रिलीजियस नंबर है, मंगल का है, हनुमान जी का नंबर है। ग्रैटिट्यूड, लोगों को हेल्प करना, एम्पैथी देना, ये सब कुछ मिसिंग काफी हद तक हो जाएगा। बच्चे थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, दूसरों की फीलिंग्स नहीं पूरी तरह से समझ पाएंगे। आप सबने बोला कि नहीं मेरे अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग में से किसी ने ये रियलाइज नहीं किया कि नंबर 9 की अपनी एक पावर है मंगल की, एंड मंगल बीइंग एन हनुमान जी नंबर, इट्स अ वेरी प्योर नंबर। आप लोगों को हेल्प करेंगे, आपके नेबरहुड में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, आपके अंदर कोई ना कोई फीलिंग एक रहेगी उनको हेल्प करने में, ये वो नंबर काम करता है। और जब ये नंबर नहीं होता, यू टेंड टू ओवरलुक द फीलिंग ऑफ अदर्स अगेन, बहुत ज्यादा एम्पैथी नहीं होगी। सो प्लीज पेरेंट्स, जो भी आप हैं, आप प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा, बिकॉज आई एम फॉर्चुनेट, मेरी डॉटर के नंबर 9 है, बट मैं जानती हूँ बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चों में नंबर 9 नहीं है। सो जस्ट इनकलकेट कि हम लोग अपने बच्चों को कम्युनिटी में कुछ करना सिखाएं। हिमांशु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैम मेरी डॉटर और मेरे सन दोनों की ही डेट ऑफ बर्थ में 9 नहीं है। हाँ जी। और जो आपने बोला वो बहुत कुछ सही भी है। हाँ दोनों ही अभी से ही ऐसे हैं तो ना फर्क नहीं पड़ता किसी को कोई हर्ट हुआ या नहीं हुआ, उनको जो चाहिए उन्होंने जो बोला दैट्स ऑल। अब उसके आगे उन्होंने सुनना है ना बोलना है। बिल्कुल सर, यही हमारे ऊपर होगा सर कि हम अपने बच्चों में शिक्षा डालें कि वो कम्युनिटी को हेल्प करें। एंड माय ओनली रिक्वेस्ट इज कि प्लीज छोड़ के मत जाइए, बिकॉज ये नंबर 9 का स्लाइड में खत्म नहीं होता। देयर इज समथिंग व्हिच इज सेव्ड फॉर यू। सो एक रिक्वेस्ट है टू पीपल, डोंट लीव, आप कुछ मिस कर जाएंगे। इफ यू वांट टू कैच अप ऑन यूट्यूब, फिर बात दूसरी है। फिर मैम आपने एक और बात बोली 4, 5, 7 के लिए। हाँ जी सर। तो जैसे आपका जो 7 में था वो मेरे साथ पूरा है, क्योंकि मेरे लोशो ग्रेड में 4, 5, 7 तीनों नंबर नहीं है। ठीक है सर। जबकि मेरा ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर 1 है। हाँ जी, तो बहुत बड़ी पावर है सर ड्राइवर और कंडक्टर 1 होना। ये मेरे स्टूडेंट्स जो इस क्लास में हैं, मतलब आई एम श्योर उनके कान खड़े हो गए होंगे ड्राइवर 1 कंडक्टर 1 सुनकर, बिकॉज ये इटसेल्फ में बहुत पावरफुल नंबर है। यू वुड बी अ वेरी गुड पर्सन हु वुड बी हैविंग अ गुड लीडरशिप क्वालिटीज। आप अपनी लाइफ में यूज करिए इनको, अगर आप चाहकर भी बाय चांस से नहीं यूज कर रहे, इसको बहुत स्ट्रांगली यूज करिए। लेकिन मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, क्योंकि 4 और 5 में आपका सब मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं जाकर किसी ना किसी जने को कमी आ जाती है, कि कुछ नंबर से कमियां आती हैं, बट यू हैव अ वेरी स्ट्रांग नंबर, और इसको आप बहुत पॉजिटिव लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। यू हैव अ वेरी नाइस नंबर, बिलीव मी। 1 और 1 बहुत कम लोगों के लिए आता है। ठीक है मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी अपर्णा जी बोलिए। मैम मेरे मतलब लोशो ग्रेड में अभी 5 टाइम 9 आ रहा है। सॉरी 5 टाइम 9 आ रहा है। आपकी अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही, थोड़ी देर रुक जाइए, मेरे को पहले स्लाइड खत्म करने दीजिए, फिर उसके बाद आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, अदरवाइज वो रह जाएगा एंड पीपल विल जस्ट ड्रॉप थिंकिंग कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों में से चाहूंगी किसी के पास ड्राइवर 4 और कंडक्टर 9 है तो प्लीज अपना हैंड रेस करिए, ओनली फॉर द पीपल हु हैव ड्राइवर 4 एंड कंडक्टर 9। मैम मेरा है। यस मेरा मैम। संदीप कुमार अरोड़ा। ओके संदीप जी, आपकी हेल्थ ठीक है? मेरा भी है मैम। मेरा भी है मैम। आपकी हेल्थ ठीक है? आप लोगों को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं मैम। वेरी गुड। मुझे हो रहे हैं। ओके, जिनको हेल्थ रिलेटेड मैडम जिनको भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सा उपाय दूंगी, आप प्लीज उसको करिएगा। 1 किलो आटा में आधा किलो चीनी का भूरा, जो चीनी पीस के डालते हैं ना, उसको भूरा बन के डालिए, और ये जो मिश्रण है ये रोज चींटियों को खिलाइए। ठीक है, ये आपके हेल्थ में आपको कहीं ना कहीं जाकर बेनिफिट देगा। 1 किलो आटा और आधा किलो भूरा, उसको मिक्स करके
रोज चींटियों को खिलाइए। भूरा मीन्स शुगर को पीस के, जो शुगर आप मिक्सी में अच्छा, शुगर पीस के पिसा हुआ चीनी, हाँ। उसको मिक्स करके ये रोज बाय डिफॉल्ट आप एंट्स को खिलाइए। जिनको भी हेल्थ रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं, प्लीज आप इसको एंट्स को खिलाइए। भगवान करे आपकी हेल्थ ठीक हो, बिकॉज ड्राइवर 4 कंडक्टर 9 या कंडक्टर 9 एंड ड्राइवर मतलब सॉरी ड्राइवर 9 एंड कंडक्टर 4 दोनों कॉम्बिनेशन में ये इश्यू आ सकता है। सो आप प्लीज ये छोटी सी रेमेडी जरूर करिएगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी। यस मैम, थैंक यू। किसी का भी ड्राइवर 1 एंड कंडक्टर 8 और ड्राइवर 8 और कंडक्टर 1? यस मैम, मेरा है। कंडक्टर 8 है और ड्राइवर 1 है। ड्राइवर 4 है मैडम। नहीं सर, सिर्फ ड्राइवर 1 कंडक्टर 8 या ड्राइवर 8 कंडक्टर 1? किसी का है? ड्राइवर 8 कंडक्टर 1। आई एम स्वाति। यस मैम। स्वाति, आपकी आर यू मैरिड? यस मैम। ओके, एंड स्वाति, आपके फादर के साथ या आपकी रिलेशनशिप ठीक चल रही है? यस मैम, ठीक चल रही है। फादर से थोड़ा थोड़ा आर्ग्यू हो जाता है। बस वो ही चीज पता करनी थी, बिकॉज इसमें ना फादर के साथ अनबन होती है। दैट इज द ओनली रीजन आई वांटेड टू चेक। मैरिड लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं, फादर के साथ हो जाती है। हाँ, और उसके एज सच नहीं है। जस्ट बी कॉन्शियस बिकॉज ऑफ दिस नंबर, फादर के साथ थोड़ी सी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। यस मैम, वो है। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं इसकी रेमेडी को नहीं, मैम वो शुगर का कितना लेना है क्वांटिटी? आपका जो आटे की क्वांटिटी है वो 1 किलो है, और जो शुगर की क्वांटिटी है वो ½ kg है। ½ kg जो शुगर को पीस के डालना है आपने, और इसको मिक्स करके इसको डेली चींटियों को दीजिए खाना। जी। ठीक है, थैंक यू। ओके, आगे चलते हैं। अनदर क्विक थिंग जो थोड़ा सा एक्साइट करेगा लोगों को। कई लोगों ने रिपीटेड नंबर्स के बारे में बात करी थी। किसी का 777 नंबर है हमारे पूरे पार्टिसिपेंट लिस्ट में? किसी का भी 777? मैम 777 है। मैम 777 है। कुसुम जी, आपने बोला? संतोष नहीं मैम, मैंने नहीं। ओके, एक सेकेंड जी। संतोष महेश्वरी, आपने बोला है? यस मैम, 777। ओके, संतोष जी, आप कोई बिजनेस तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं। चलिए, ध्यान रखिएगा कि किसी से बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी है, और अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा संतोष जी। ओके मैम। ठीक है, और किसी का है 777 या 777? मैम हेल्थ। मैम 777 है मेरा। मैम 777 है मेरा भी। ठीक है, 777 प्लीज ध्यान रखिएगा। द ओनली थिंग इम्पोर्टेंट फॉर यू इज कि आप लोग कोई भी काम पार्टनरशिप में मत करिएगा, और हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैम हेल्थ किसकी रिगार्डिंग? आपके अगर मिसिंग नंबर 5 है? नो मैम, 5 नहीं है मैम मिसिंग नंबर। आपके पास 5 है ऑलरेडी? 5 नंबर भी मिसिंग है। हाँ मैम। ठीक है, फिर आप मेरा मिसिंग है। कौन है? सॉरी, आप अपना नाम बताएंगे? अपर्णा। 777 है और 5 मिसिंग है। अपर्णा, जस्ट चेक कि आपको थायराइड की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? यस मैम। ठीक है मैम मुझे है। हाँ मैम। तो जस्ट टेक केयर, बिकॉज ये प्रॉब्लम आ जाएगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड अपने शुगर लेवल्स का भी ध्यान रखिएगा। मैम मुझे है, मेरा 777 है, 5 मिसिंग है, लेकिन मेरे जो ड्राइवर कंडक्टर 5 है। नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 5 है तो मिसिंग 5 कैसे हुआ आपका? चार्ट में नहीं है, 2-3 के कारण। अच्छा, यू मीन टू से कि आप ओके, बट वो आपका 2-3 के कारण वो जो आपका ड्राइवर 5 निकल रहा है वो तो चार्ट में आएगा मैम, वही तो आएगा आपके चार्ट में। आपका ड्राइवर 5 है ना? ड्राइवर और कंडक्टर 5 ही है मेरे, तीनों ही 5 है। हाँ जी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू मैम। ओके मैम संतोष, आप 777 के लिए हेल्थ रिगार्डिंग कौन सी इश्यूज बोल रहे थे?
इट इज अगेन, देखिए मैम 777 और 777 में प्रॉब्लम आ जाती है कई बारी हेल्थ रिलेटेड में, आपका थायराइड का प्रॉब्लम या शुगर लेवल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके मैम, ठीक है सर, सिर्फ सेहत का ध्यान रखिएगा। ठीक है। 222 किसी का नंबर है? यस मैम। मैम अपना ना थोड़ा सा सोने का ध्यान रखिए अगर आपका 222 है, बिकॉज यू नीड गुड स्लीप, अदरवाइज आप मेरे का 777 का आया था, अभी वो रह गया। मैम 222 मैम मेरे बेटे के चार्ट में है। एक मिनट प्लीज, मेरे को सबको म्यूट करना पड़ेगा, सॉरी, सो सॉरी। आप अपने आप को अनम्यूट करिए, एक जना जो अभी मेरे से बात कर रहे थे अपने बेटे के बारे में। मेरे चार्ट में, मेरे बेटे के चार्ट में 222 है। हाँ जी, बस आपने ये ध्यान रखना है। उसके साथ मैम दिक्कत ये है कि सिर्फ उसके पास 222 है, 9 है और 111 है, और कुछ है ही नहीं नंबर। कोई बात नहीं मैम, सिर्फ 222 का ये ध्यान रखिए, बच्चे को ना ओवर स्ट्रेस मत करिएगा, थोड़ी सी चीजें रिलैक्स करिएगा उसके साथ, बिकॉज माइंड से वो बहुत डिस्टर्ब रहता होगा। स्पेशल चाइल्ड है। देन यू टेक केयर, बिकॉज माइंड से ना डिस्टर्बेंस हो जाती है, अग्रेशन बहुत हो जाता है इन बच्चों में। ठीक है, तो यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। मैम क्या कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं इसमें कोई रेमेडी? रेमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा देखिए, जानवरों को खिलाना सबसे बड़ी रेमेडी होती है। तो जो मैंने आपको आटा और चीनी का बोला, नहीं आ रही जा रही मेरी आवाज। हाँ जी, वो मैं कर सकती हूँ, अपने बेटे से करवा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, किसी को भी हेल्थ रिलेटेड हो आप वो उपाय जरूर करा सकते हैं। उसमें देखिए इवन टिल हेड, वैसे ही जनरल में आप ये ध्यान रख के चलिए, किसी को जानवर को खिलाने में कोई भी पर्पस नहीं होता, वो सारी चीजें जो आप यूनिवर्स में देते हैं वो चीज आपके पास वापस आती है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के चलिए, ये ध्यान में रख के चलिए कि मेरी सेहत ठीक नहीं है इसीलिए मैं ये दे रही हूँ, नहीं, आप यूनिवर्स को कुछ दीजिए, यूनिवर्स आपको वापस में कुछ देगा। जी जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। यू वेलकम, वेलकम। 2 मैम 22 के लिए क्या होगा? 22 के लिए ऐसा कुछ नहीं है, देखिए 22 एक अच्छा नंबर है इटसेल्फ में, अगर आप ध्यान दें, आप 22 होने पे ना आपके अंदर इंट्यूशन पावर्स बहुत अच्छी होंगी, आप लोगों को अच्छी तरह से भाप पाएंगे। सो ऐसा कुछ नहीं है 22 में। ठीक है, हेलो। हाँ जी मैम बोलिए। हाँ जी मैम, मैं प्रीति बोल रही हूँ। मेरा ड्राइवर है 8 और कंडक्टर है 4 और कुआ है 1, और मेरे चार्ट में 88, 111 और 777 आता है। हाँ तो मेरा भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहेंगे? मैम वो अभी बात नहीं करें, वो अभी बात नहीं करें मैम, इन्हीं नंबर्स के ऊपर बात करें। लेट्स फोकस ऑन दिस मैम प्लीज। ओके। 44 किसी के पास है? मेरे पास है मैडम। मैडम मेरे पास भी है। आपको हाथों से काम करने का, मेहनत करने का प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके लाइफ में स्ट्रगल्स हो रहे होंगे, करेक्ट? यस मैम, टू मच स्ट्रगल है मैम। हाँ जी, मेरा तो 3-4 है मैडम, 3-4 है। हाँ जी, हाँ जी, जो देखिए 2 4 3 4 लाइफ में स्ट्रगलिंग बहुत होती है इन नंबर से। तो जैसे मैंने आपको बोला, आप भी प्लीज कुछ ना कुछ यूनिवर्स को दान दीजिए, जो आपको वापस में आपकी परेशानियां कम हो। यस मैम। ठीक है, और अच्छे भाव से दीजिए, वापस लेने के भाव से मत दीजिए, हमेशा ईश्वर को शुक्रिया करिए जो भी आपके पास है। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन और था प्लीज। हाँ जी बोलिए मैम। 4-1 है मेरे, 4-1। 4 टाइम्स 1 है? यस मैम। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, अगर 4 टाइम्स 1 आ गया तो आप तो अच्छा है, आपने अपनी सारी फीलिंग्स लोगों से एक्सप्रेस कर पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और मैडम 9 5 बार है तो वो मैं बाद में बात करूंगी, प्लीज लेट्स गो ऑन टू। प्लीज मैम, मेरे सिस्टर का बेटा है मैम, 9 5 बार है उसका, तो उसकी काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। हाँ मुझे मालूम है, देखिए इसके लिए सेपरेट आपको इन टच रहना पड़ेगा, दैट्स नॉट विद द लार्जर ग्रुप। मैम 999 और 111 के लिए क्या रेमेडी है? मैम आप कोई भी रेमेडी लीजिए, जो मैंने आपको बेसिक वाली सबको दी है ना आज, वो रेमेडी हर किसी में काम करती है। ठीक है, शुगर एंड हाँ शुगर एंड आटा की हर किसी को, एंड्स को खिलाने में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, 33 किसी के पास है? विकी आपके पास है 33? यस मैम है। आप लोग बहुत क्रिएटिव हैं, प्लीज अपनी क्रिएटिविटी को यूज करिए।
ठीक है, थोड़ा सा आपके अंदर मैं कहती हूँ गुस्सा हो सकता है, ज्यादा आ जाए एकदम से, बट अगर आपके पास 3 है तो अपनी क्रिएटिव पावर को यूज करिए। इट इज नॉट ओनली कि हर नंबर बुरे होते हैं या हर नंबर अच्छे होते हैं, पावर को यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक लास्ट नंबर लेंगे 999। इधर काफी लोगों ने मुझे इसके एसोसिएटेड नंबर पूछा। आप थोड़ा ध्यान रखिए अपने गुस्से का, बिकॉज आप राय का पहाड़ बनाते हैं, छोटी सी बात का कई बारी बहुत बड़ी बात बना लेते होंगे। तो अगर आप इस चीज में कॉन्शियस हैं और आप रियलाइज करते हैं तो इसको यहीं पे रोक दीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में ना बहुत ज्यादा परेशानी करेगा। मैम जब गुस्सा आता है तो उससे हम कंट्रोल नहीं कर मेरे को समझ आती है सर, बड़ा से निकल जाती है। आप सही बोल रहे हैं, तभी मैंने बोला ना ज्यादा गुस्से से क्या यस मैम, एब्सोल्युटली राइट, शारीरिक तकलीफ शुरू हो जाएगी आपको। सो बी केयरफुल, छोटी सी बात का बहुत बड़ी बात मत बनाइए, वहीं पे समझ के कंट्रोल करिए। मेरा पर्पस आप लोगों को बताने का इसीलिए है कि जहां पर आपको कमियां दिख रही हैं वो कमियां कंट्रोल में कर सकें। मैम मेरा 99 33 दोनों है। 99 हो तो 99 33 कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 33 बहुत क्रिएटिव नंबर है, मैंने पर्पसली 33 लिया है सो दैट जिनके पास 33 है, ठीक है मुझे समझ आती है कि गुस्सा आ जाता है इनको भी, बहुत एकदम से गुस्सा आ जाता है, बट ये बहुत क्रिएटिव नंबर है। आप अपने ना क्रिएशन को यूज करिए, अपनी इमेजिनेशन पावर्स को यूज करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है मैम 11 भी बता दीजिए सर। 11 अच्छा नंबर होता है, कम्युनिकेशन का नंबर है, 11 अच्छा नंबर होता है। 111 मैम वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, 4 times 1 भी अच्छा है, डोंट वरी। मैडम 99 लेने से सर जैसे 99 अच्छा रिलीजियस नंबर होता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए सर। हेलो मैम। बोलिए मैं कुसुम बोल रही हूँ। हाँ जी कुसुम बोलिए। मैम अगर किसी के चार्ट में 3, 5, 6, 7 मिसिंग है तो क्या उसका शादी मतलब डिले या होगा नहीं, ऐसा कुछ है क्या? मैम वो पूरा कैलकुलेशन होता है, ऐसे वर्बली नहीं काम। शादी के लिए योग निकाले जाते हैं, जो आप अगर चाहें किसी का कंसल्ट करने के लिए तो आप सेपरेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये बोलते हैं ना 5, 6 मैरिज नंबर। 6 देखिए 6 and 2 6 इज अ हार्मनी नंबर। 6 घर का नंबर होता है, हार्मनी का फैमिली नंबर होता है, 3 फैमिली नंबर होते हैं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, बट इनमें योग कैलकुलेट किया जाता है मैम। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा, एंड आई विल बी कमिंग सून विद अनदर वेबिनार ऑल्सो। जो भी इंटरेस्ट रखते हैं न्यूमरोलॉजी सीखने में, अगर आप नोटिस करें जो मैंने फीस यहाँ पर रखी है 6666 जो आपको दिखाई थी मैंने, उसमें आपको आपका 5100 रुपीज का चार्ट एब्सोल्युटली फ्री कॉस्ट है, और आप अगर आप रियलाइज करें तो आप सिर्फ 1500 के आसपास ही इन पैसे दे रहे हैं मुझे। सो अपने और अपनी फैमिली का आप बेनिफिट कर सकते हैं बाय लर्निंग दिस साइंस, एंड फ्यूचर में अगर कोई प्रोफेशनल बनना चाहता है डेफिनेटली इट इज अप टू देम कि वो प्रोफेशनली इसको वर्क करना चाहते हैं। इट इज अ डिटेल कोर्स, तो आप उससे रियलाइज करेंगे कि कहीं पे भी कोर्स हो जाता है ये। हाँ जी 15 दिन में पूरा कोर्स हो जाएगा ये। एक्चुअली में ये टोटल जो आपका कोर्स है, जो मैंने 15 डेज बोला है, थ्राइस अ वीक का कोर्स है। आपको 10 क्लासेस मिनिमम चाहिए होते हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है मैम। अगर कोई स्टूडेंट, जैसे हमारा बैच अगर स्लो चल रहा है तो अगर वो 10 क्लास में नहीं कवर हो पा रहा, 12 क्लासेस में भी कवर हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मुझे उस कोर्स को भगाना है। ठीक है, जब तक क्लैरिटी नहीं होती फिर ये पढ़ाने का भी पर्पस नहीं है। वो चार्ट मैम किस चीज का है, वो चार्ट जो आप बता रहे हैं? वो चार्ट आपका पूरा न्यूमरोलॉजी चार्ट है, दैट इंक्लूड्स योर ड्राइवर कंडक्टर के आपके एनालिसिस, लकी नंबर्स, आपका नेम न्यूमरोलॉजी, आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी, that includes your missing numbers की updates, that includes your repetitive numbers की updates, आपके कौन से प्रोफेशंस हैं, जो भी कोर्स में है वो एक इंडिविजुअल की डिटेल स्टडी आपके पास आ रही है। ठीक है, आपके अगले 9 साल कैसे निकलेंगे उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन है, और वो आप कोर्स के दौरान में भी सीख रहे होंगे। मैम मतलब ये मतलब इतने दिन में हमारा पूरा कोर्स हो जाएगा न्यूमरोलॉजी का जो भी? एब्सोल्युटली। आपके अगर बैच सारी चीजें जल्दी समझता है
तो आपके ये 10 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। बट अगर बैच में कहीं पे भी कुछ स्लो जा रहा है, 1-2 क्लासेस ऊपर करने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है मैम, इसके साथ पैरा कार्ड भी है, आपने नीचे मेंशन किया है। हाँ जी, मैं एक्चुअली टैरो, कल मेरा वेबिनार हुआ था टैरो के ऊपर। सो टैरो का भी कल से एक सेशन शुरू हो रहा है, उसका अलग कोर्स है 5100 रुपीज का टैरो का, एंड न्यूमरोलॉजी का भी कल से शुरू हो रहा है। टैरो नहीं मैम, पैरा कार्ड। ओके, पैरा, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि मैम टाइमिंग्स कोई और होंगे? इट डिपेंड्स। देखिए, नॉर्मली लोग प्रेफर करते हैं कि आफ्टर ऑफिस आवर्स किए जाएं, बट अगर आपका कोई स्पेसिफिक टाइम है तो देयर इज गोइंग टू बी अनदर सेशन जो वीकेंड्स पे होगा, एंड दैट कैन बी एडजस्टेड डिपेंडिंग अपॉन, जैसे अगर ग्रुप ऑफ लेडीज हैं एटलीस्ट 3-4 होने चाहिए जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर एडजस्ट कर रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक वीकेंड पे भी क्लास शुरू होने वाली है। यस मैम, बिकॉज़ हाउसवाइफ्स के लिए मुश्किल हो जाता है। एब्सोल्युटली, आई अंडरस्टैंड। आप लोगों को जो भी लेडीज हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, मेरे को ऐसा नहीं होता कि मुझे ग्रुप में 40 जने चाहिए। ठीक है, मेरे ग्रुप में अगर 6 जने भी होंगे, 4 जने भी होंगे, एज फार एज एक ग्रुप फॉर्म हो जाए और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनका वीकेंड्स पे भी ड्यूरिंग द डे टाइम क्लासेस कर सकती हूँ। मैम, सिग्नेचर एनालिसिस में मैं आपको इंफॉर्मेशन देती हूँ अबाउट द राइट सिग्नेचर करना चाहिए। बाकी सिग्नेचर एनालिसिस एक इटसेल्फ में एक बहुत डिटेल स्टडी है, एक पूरा कोर्स है। ठीक है, जैसे हम राइटिंग एनालिसिस करते हैं, सिग्नेचर एनालिसिस में भी डिटेल है, बट फिर भी इस कोर्स में मैं एक अपडेट जरूर दे रही हूँ कि सिग्नेचर्स होने कैसे चाहिए। तो जो विजिटिंग कार्ड्स एंड लेटर है, एब्सोल्युटली वो बताती हूँ कि कैसे होने चाहिए, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए जब हम न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, और अगर इसको प्रोफेशनली आगे लेकर जा रहे हैं तो हमें लोगों को राइट गाइडेंस भी तो देनी है। ठीक है, अपने लिए भी सीखना है और दूसरों के लिए भी सीखना है। यार कार्ड्स, ब्रेसलेट्स वगैरह ये सब चीज़ क्या है? ये सब रेमेडीज पॉइंट ऑफ व्यू से होती है मैम। जैसे आपकी वैदिक रेमेडीज होती हैं, उसी तरीके से फेंगशुईज की भी रेमेडीज होती हैं। तो इस कोर्स में, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम फेंगशुई भी रेमेडीज बताते हैं, तो आपको मैं बताऊंगी कौन कौन से यंत्र हैं और किस किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। और तो मैम अगर कोई सेशन मिस हो जाए तो मैम उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी? हाँ जी, जसप्रीत जी, थैंक यू मैम। इसमें जो भी, सॉरी मैम, 1 मिनट मेरे को कवर करने दीजिए, फिर आप पूछ लीजिएगा। इस कोर्स में आपके पास हर जो हमारा सेशन होता है उसके बाद आपको PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिलता है जो क्लास में कवर किया जाता है, और उसके अलावा जो भी रिकॉर्डिंग होती है उस दिन की, वो आपको इंडिविजुअली प्राइवेटली यूट्यूब पे शेयर करी जाती है। वो आपका प्राइवेट होता है। ठीक है, आप उसको आगे शेयर नहीं कर सकते, बट आप उसको कभी भी देख सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ना हिंदी भाषा में? सॉरी मैम, दोबारा बोलेंगे? मैम हिंदी लैंग्वेज में। आप क्या कह रहे हैं, स्टडी मटेरियल का बोल रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में? हाँ जी। मैम, मैं जब पढ़ाती हूँ ना, तो होता जरूर है कि इंग्लिश में, पर बात पूरी हिंदी में की जाती है। जहाँ तक है, देखिए, हम सबको जानते हैं कि गूगल पे ट्रांसलेशन अवेलेबल है। आपको इसको हिंदी में कवर करना होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो इसको हिंदी की स्लाइड बना दूंगी। ठीक है, बोलने के समय डेफिनेटली मेरा ये अपडेटेड होगा, बट अगर किसी को हिंदी में चाहिए, ये कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर है मैम। हिंदी और इंग्लिश का कोई फर्क नहीं, नेशनल लैंग्वेजेस में ही लोग कर रहे होते हैं, हम लोग गूगल का ट्रांसलेशन यूज कर लेते हैं उसको। और किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड? मैम एक नंबर से रिलेटेड है मैम। बोलिए सौरभ जी। मैम मेरे पास ये क्वेश्चन है कि मेरे ना 4 और 9 2 बार आ रहे हैं, तो इसका क्या मीनिंग? आपके क्या 2 बार आ रहे हैं? 4 और 9 नंबर 2 बार आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखिए, 4 2 बार आने में स्ट्रगलिंग नंबर होता है, तो लाइफ में हर्डल्स बहुत होती हैं, बट आप मेहनती हैं, हाथों से काम करने में बिलीव करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आती सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, बट 4 नंबर वालों के थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रगल होती है। 9 2 बार वो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ह्यूमैनिटी का नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमि जी, आज की PDF नहीं मिलेगी, सॉरी, बट ये YouTube में डेफिनेटली ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी और आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। मैं डेफिनेटली ये लिंक शेयर कर दूंगी। अगर किसी को बाय चांस से ग्रुप से एग्जिट हो गए हैं
तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो लिंक भेज दूंगी, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे इसको अपलोड करने में। गैलेक्सी S9, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? जगदीश जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? वेंकट वर्मा जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? यस मैम, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग टू यू सर। मेरा ड्राइवर भी 9 है और कंडक्टर भी 9 है। कोई बात नहीं सर, ह्यूमैनिटी का नंबर है, डजंट मैटर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैम थैंक यू मैम, थैंक यू। नंबर भी बने। हाँ जी मैम, ड्राइवर नंबर बने हैं और कंडक्टर नंबर भी बने। बहुत अच्छी बात है मैम, जिनका ड्राइवर 1 और कंडक्टर 1 है, बहुत अच्छी बात है। अपनी काबिलियत को यूज करिए, मॉनिटर किस्म के लोग हैं, डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं, आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहेंगे हमेशा, ठीक है। चलिए मैं इस सेशन को अब एंड करती हूँ। हाँ जी बोलिए सर। मैम मेरा कंडक्टर और ड्राइवर साथ है और 4 times 7 आ रहा है मेरा। सर अपना थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान दीजिए। 4 times ज्यादा 7। प्रॉब्लम है। हाँ जी आपको जो वो मैंने रेमेडी बोली है वो प्लीज इस्तेमाल करिए, वो रेमेडी बहुत अच्छी है, ठीक है। कौन सा मैडम है, एनिमल्स को दिखलाने का? हाँ वो आप आटे में 1 kg ऑफ आटे के अंदर 1/2 kg ऑफ जो चीनी को पीस के डालते हैं ना, एंड्स को खिलाइए, वो उससे काफी फर्क पड़ता है। आप चाहें तो इवन वेडनेसडे के वेडनेसडे गाय को चारा खिलाइए, पालक या चारा खिलाइए, वो आपकी हेल्थ पे ठीक करेगा, ठीक है। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन है मैडम। मेरा भी है मैम। मैडम एक क्वेश्चन है मैडम। बोलिए सर। मैडम मेरा ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 4 है एंड 3, 5, 6 मिसिंग है मेरे, तो कुछ मैरिज इशू आता है क्या? हाँ जी बिल्कुल मैरिज इशू आता है इसमें? हाँ जी थोड़ा बहुत, हाँ जी। तो मेरा मैरिज अभी हुआ नहीं, आई एम 46। हाँ जी तभी बोला ना कि उसमें आता है, इशू होता है। ओके मैम इसका रेमेडीज कुछ मैडम? सर यू नीड टू गेट इन टच विद मी, ये डिटेल ओके श्योर थैंक यू। मैम मेरा ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 2 है, इसमें क्या इशू आता है? हाँ जी सर, हाँ जी ड्राइवर 4 कंडक्टर 2। हाँ जी दोनों में है प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा एंड विल सून मीट। इन द मीन टाइम जिसको भी कोर्स के लिए ज्वाइन करना है प्लीज मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे इन टच करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय गुरु जी। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so